Hello, everyone. Welcome to XME Medical, and we have our guests for tonight. We are waiting on one more. With us, we have Dr. Zen, we have Dr. Noman, and we have Dr. Umar. Can you guys please give us forward? Let's start with Dr. Zen first. Hello, my name is Dr. Muhammad Zain, and I don't know why I can't see the other two people. Is this something wrong with the stream or Now the stream is working. I Everyone think it's else can working. see. You can probably I see can only yourself see our charming Dr. Noman first, in the and stream. every Yeah. there's Dr. Omar has also joined I think us. there's some problem. Okay. I think there's some problem with the camera right now. Okay. So I'm going to start with the stream. My name is Dr. Muhammad Zain Khalid, and I graduated from Liaquat National Medical College, which is affiliated with Jinnah Sindh Medical University in the year of 2021. After getting done with my MBBS, I got inducted in the Aga Khan University internship program, and it started in April 2021. So I did my internship just completed this year in March 2022. And in Aga Khan, basically, there is an internship test that you have to go through and an interview process in order to get inducted into the interview in the internship program. My colleague was Dr. Noman, and he also did his internship from Aga Khan University. So, Dr. Noman, would you introduce yourself? Where did you do your MBBS and everything? Sure. Thank you, Dr. Zain. My name is Dr. Numan Kashid. I'm a graduate of Dow Medical College. I graduated uh, in 2021, after which I started my AQ Hub job last year. Likewise, I went through the same induction process and had to give the exam and the interview. And I started a bit late. I was on the waiting list, but I got to start my house job on April 23, and that's about it. And I completed my house job last month. Can Dr. Umar join in the discussion? Assalamu alaikum. So, I'm Dr. Umar, and Noman is a colleague of mine. So, I graduated same in 21 April, 2020 April, 21 April, and so I did not apply to AKU because I was studying for steps, and I think this could come as a viable discussion later on as we go about it as to what are the pros and cons of going for AKU, not going for AKU, staying with your parent institution. So well, I getting a job in civil was easy. The process is entirely different. You really don't need to give a test. You get a merit number, and then there's just ward selection that I think most of us uh, and now the juniors would be aware of because they have already gone through it. Yep. So the question today is that how did you guys get interviewed for your job? So in Aga Khan University, after you basically pass the internship test, then there's a list that comes out for the interviews. Previously, there was a series of stations that consisted of IV cannulation, Foley catheterization that used to come in the front test. But in our, because of the COVID wave, all of that was not included, and only the ethical stations were kept. There were about, if I can recall correctly, there were about 8 stations, and all of them were related to ethics, workplace environment, the things that doctor face in day-to-day life, and our marking and scoring was done according to that. And the people who had higher merit than me couldn't pass the interview because it's a totally different kind of a ball game, and it is because I maybe some of us got lucky that the normal usual stuff of the medicine was not asked in our interview process, and it was linked to ethics only. So it was kind of an all-rounder thing that they judged you according to your CV and then how you perform in the ethical day-to-day scenarios. I still can recall that there was a station in which the question was that you are working in a ward and your senior is not letting you off because but you did take permission from your senior a month back,
and the day before your leaves, he asks you that you cannot go, काम बहुत ज़्यादा word में, and what would you do and how would you basically tackle that scenario. So this is just to give an idea of what was asked in our interview process. And Dr. Noman also went to the same interview. I saw him in the interview process as well. And Dr. Umar just highlighted that it can be a viable thing that to ask that whether it is beneficial to do your house job in your parent institute or to join Khan. So yeah. Yeah, so like Dr. Zain mentioned, it was a really all a different ball game. The questions were really different. They were nothing related to our medical studies. They were mostly about ethical. They actually judge your personality. How would you react in an emergency condition, or if a patient is really angry at you, is shouting at you, what would you do? Your next step. Um I had a really funny question in which he was like, "Which political party do you support?" I was actually shocked by the question, but I went with the party which I truly believed, and then everyone Was had it a. PTI? Sorry, I'm cutting you. It wasn't PTI. It's my personal opinion. It's actually my personal opinion, and so he told me this was not part of the questions I planned for you, but they really wanted to see how we look at our condition, how we see our medical field, and he asked me from which college did you graduate, and then he was like, why aren't you completing your internship in your house job in civil? Then I just तारीफ पे फूल बांट दिए मैंने आगा खान के. That's about it. And like Dr. Omar, I was on the crossroads to decide to do my house job in civil or AQ. I had both the options, but after close scrutiny, I went with AQ, and I really believe it was the right decision. Now I think Dr. Umar would tell you a more experience about how the house job at civil goes. Okay, so the testing process that my colleagues mentioned about getting getting an AKU was pretty complex, and they got lucky, as they said, because of COVID. So basically, in civil, the thing is entirely different. If you have graduated from Dow, you're entitled to your house job over there. However, before your interviews, there's a merit list that's pretty different from the merit list that was there. It's more of a rule number that you get for your house job. So basically, how the interview goes in civil is that there is a day or two allotted for ward selection, and in that room you're sitting and you're waiting for your merit number, and then there's always this feedback, an informal feedback of words that's going about as to which word is good or which word is bad, which word is good for learning or for studying. So basically, all the words that are good for learning, or all the words that are not good for learning and have minimal workload, i.e., they're good for studying, are immediately taken up. So there's that, and some people do have to then choose words that they weren't, really willing to. And then comes the question of how is a merit list formed, or what's your merit number? What decides that? I think that is something that you'll probably know on the day of Qayamat only, because till now so many generations have passed and no one knows the criteria of the merit number. Some people say it's the GPA, some people say it's the word marks, some say it's, we just don't know. We are like always thinking about what could be what could be the factors that decide a merit number. So that was pretty different. However, one thing's one thing that should be mentioned is as to how students from other colleges can get in civil for house job. For instance, people who are coming from Jinnah, or there are a lot of students who come from, or there are a lot of students who come from interior medical colleges, the ones that are situated in interior Sindh, and Zauddin and Isra. Zauddin, though I haven't seen any, or from China. So that's a viable question that should be asked as to if any non-Dawite wants to, come for
come for house job in civil, what should they do? Okay, I'll just continue with the next question. Did you get to pick your starting field in house job like medicine or surgery, or was it later? So, because this is an extension of what I said, it was the same day only. For instance, if your house job is starting on 1st May, you're probably going to have a day on 27th April or 28th April on which you gather in an auditorium and you get to choose. There are like 25 or 26 words on the screen, and one by one, each number is called, and then you get to choose which word you want. So, for civil, it's pretty simple. You get to decide what words you want, depending on the availability, of course. I would, yeah, I would like to say I was also on the list in civil, and in civil, their waiting list it was really low. So yes, so I did not get the what choices I really wanted, and I wasn't with my friends. This was one factor which forced me to go to AQU. अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? Walaikum salam. Walaikum assalam. You guys introduce yourself, right? My name is Dr. Mohsin. I graduated from Dow International Medical College back in 2021, and I did my house job from Dow University Hospital. I know Dr. Omar and Noman because they graduated with me, but they were from the Dow Medical College. But we gave exams together. Uh, Hopefully this session will be good for everyone, and I know there are a lot of students who are curious about house job options in different hospitals, and we have people from Aga Khan, Dow Medical College, Civil Hospital, as well as Dow Hospital. I'm representing Dow Hospital, and just to catch up, basically the thing is majority of students, they are confused about the working hours and the situation, and also the exams about for AKU, like when should they give the exam, how they should prepare for it. But in the case of Dow University Hospital, you just have to graduate from Dow International Medical College, because they don't usually take students from other universities, unless like you want to do a voluntary house job, but they don't usually take it, as far as I know, because a lot of students, they were asking me that if they can join Dow University Hospital as a house officer if they haven't graduated from Dow International Medical College. In Because they have limited seats, and most of the DIMC student, they don't used to do house job, they used to go for steps, and they got matched, and they just travel to US. But now, because all of the seats are occupied, so they don't usually, like make an option for other students, other doctors, to join Dow University Hospital as a like they don't have a criteria to join Dow Hospital as a outsider from other universities. So I just gave my input here, because I don't know what you guys were talking about, and I just joined. I was just, I was driving. There was just a huge traffic in Karachi today. I don't know, but Alhamdulillah, I am here. Hopefully, this session will be great. So I introduced myself. What we are going to do. So because I think what we should do. There is a different type of work environment, because this is not a house job seminar for specific towards specific hospital, or like if we were doing this session for only OJA or AKU, we'll be talking about the test, like how will you proceed, how do you study. But I think the most of the students, they should know that what is the work environment in different hospitals, like what are the different wards and facilities are available in different hospitals. Like civil hospital, they have a huge SIUT setup, where mostly students, they want to go and rotate, they want to learn renal transplant, they want to see different cases related to any urinary disorders, which are related to urology, any or other disorders. They have a huge trauma center. Most of the cases, we usually from Dow, we refer it to civil hospital. Like when you talk about AKU, we talk about professionalism. We talk about like how professional the environment is, how they follow the protocols, because this is the mindset. Like they usually in AU,
those students, they want to go and they want to learn the protocols, because obviously it's a high demanding hospital, first of all, because everyone, because back in days everyone wanted to go now. But when if someone has got money, their ambition is Aga Khan first, because they want to go to AKU, they want to study there in AKU, they want to take an exposure. And the mindset is the protocols. We will learn the whole protocols. We will know about the electives and research way before any other student in different universities. They would get a chance to learn that. Like, we all are graduates, and we know we have colleagues in different universities, even our Khan, back in our university days as well, when we are doing house job. Like, I've seen Noman, like, I've seen his snaps when he was in AQ. I was doing house job in Ojab, and I've seen Umar's snap when he was in civil hospital. Like, there's a different work environment in house job. There is another point which we should discuss. I'm just making up everything. Then after that, we're gonna start the discussion. So the other thing, we get the pros and cons of house job, because most of students, they don't pursue house job. They don't want to, because obviously the protocols. If they don't get a chance to get into AKU, then they don't want to do house job in different hospital. They just want to wait and until they get matched if they are going for steps, or they prepare for the exams. So how important is for medical student to do the house job just after they graduated? Because the gap is something which should not come right after your graduation, because our seniors, they used to have a gap of 3 months. Now we had a gap of 1 month to, like, join our house job in civil hospital as well as in OJA. AKU, they did to exam beforehand, and after that they gave you a joining letter and all. So let's talk about pros and cons of house job. What do you guys think? I believe it's a really big transaction from being a medical student entering in your professional life. It was actually shocking. You had responsibilities, um, which in medical school we were actually we were spoon fed. It wasn't the same in AQ, so it was really difficult adapting. But overall, we see that you get a chance. You get a chance to, as Dr. Mohsin mentioned, to learn the protocols, to learn how an actual hospital is run, and not simply do the stunt work. Bilkul. Exactly. Yeah, so basically transitioning from a medical student to a doctor. Ours was the batch जिसमें COVID आ गया था, and we had to take Zoom classes. Zoom पे rotations हो रही थी, and it was a shocker. Hmm. मतलब एक साल मुझे याद है कि I like literally sat for like 5-6 months and took Zoom classes. सुबह lectures होते थे, and then they thought of an idea कि यार rotations की भी आप ऐसा कहते हैं Zoom classes ले लेते हैं. Bilkul. एंड उसके बाद देन पोस्ट कोविड एक स्केयर था जब आप हॉस्पिटल हम लोग गए थे. इट वाज शॉकिंग. कभी वार्ड्स में जाते थे बस हाजिरी देने जाते थे, ना पेशेंट को हाथ लगाने देते थे, क्योंकि कोविड वाज ऑन द वर्ज. उसी वक्त सेटल्ड हुआ था, थोड़े दिनों बाद वार्ड खुले थे. तो बस ये हो रहा था कि बस दे वर लाइक जस्ट आपको फ्लोट करा रहे थे कि जस्ट टाइम आप पूरा करें एंड आप जस्ट ग्रेजुएट नाउ. क्योंकि हमारी डिग्री वी वर लाइक प्लान टू ग्रेजुएट इन दिसंबर 2020, बट इट गॉट एक्सटेंडेड बाय एटलीस्ट 4 months. हम अप्रैल 2021 के अंदर भी ग्रेजुएटेड, क्योंकि हमारे एग्जाम्स वगैरह सारे डिले हुए. Hence, seeing all the conditions, I didn't plan to do any house job. I am a Liaquat National Hospital grad, and Liaquat National also has its own private hospital, which is not better than AQ, but equally good. मतलब not equally good, लेकिन मतलब Competent. private hospitals में it is one of the bigger names. एंड उसकी हाउस जॉब भी इट इज ऑल्सो लाइक आखान जैसी, मतलब उतना वो आप नहीं बोलेंगे कि इट इज दैट मतलब टायरिंग एंड स्टफ, लेकिन मतलब अच्छे हॉस्पिटल्स में उसका नाम आता है. देन आई हैड अ डिसीजन ऑफ चूजिंग आइदर लियाकत नेशनल और आगा खान, एंड आई वेंट विद आगा खान क्योंकि थोड़े से इट्स काइंड ऑफ अ ब्रांड. आगा खान जिस तरह अपने आप को ब्रांड मतलब अपना पब्लिसिटी करता है, इट्स ऑनेस्टली अ ब्रांड. उसके अलावा द वर्किंग एनवायरनमेंट एंड एवरीथिंग, क्योंकि एक आप टेस्ट देते हैं एंड क्लियरिंग टेस्ट आफ्टर 2000 पीपल, मेकिंग इट टू द 80 मेरिट लिस्ट, इट्स काइंड ऑफ मतलब एक ओवरवेलमिंग सिचुएशन भी होती है, क्योंकि काफ़ी लोग अप्लाई कर रहे होते हैं. पीपल हु हैव गिवन स्टेप्स, पीपल हु हैव टेकन like 6 years gap, and they are only willing to do house job in Aga Khan or either get matched and go practice in the US or UK.
तो उसमें आई टुक अ डिसीजन एंड वेंट विद आगा खान. उसके अलावा देयर वाज दिस होल इंटर्नशिप प्रोसेस. जो अब आगा खान में ये होता है कि वी स्टार्टेड विद अ हाउस जॉब इन अप्रैल 2021 एंड मेरा रिजल्ट भी नहीं आया हुआ था. आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ डॉक्टर. तो आई हैव लिटरली नो गैप्स इन माय सीवी. एक दिन का गैप भी नहीं होगा मेरे. दिस इज वन ऑफ द थिंग्स. और उसके बाद व्हेन यू ग्रेजुएट, उसके बाद एक साल के अंदर, then you also have a experience of clinical work in your CV, which is also a bonus if you apply for match as well. कि आपने एज अ डॉक्टर काम किया है. हैव यू सीन द रियलिटी ऑफ अ डॉक्टर? मतलब डॉक्टर बन के काम करना एंड मतलब एक मेडिकल स्टूडेंट होकर पढ़ना इज डिफरेंट, क्योंकि आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी. यू आर नॉट लीगली बाउंड बाय एनीथिंग. आपको कोई पूछेगा नहीं. इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, आप हिस्ट्री लेना है, आपने बस केस प्रेजेंट करना है. ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजमेंट बता देंगे आप. बहुत ज़्यादा वो आप कैनेला कर देंगे, मेडिसिन एडमिनिस्टर कर देंगे, लेकिन आपको कोई पूछेगा नहीं कि अगर कोई मरीज खराब हुआ है. जब एकदम सर पे पड़ी तो उस वक्त थोड़ा अंदाजा हुआ. आगा खान एक नया इंस्टीट्यूट, नेवर वर्कड ओवर देयर, स्टूडेंट ना इलेक्टिव्स किए थे, ऊपर से एवरी प्रोटोकॉल एंड बीइंग फेस्ड बाय कंसल्टेंट्स हु आर यूएस ट्रेन्ड, यूके ट्रेन्ड. वहाँ पे तो मतलब देयर इज अ ट्रेंड कि पाकिस्तान में तो एफसीपीएस तो आपको बहुत कम मिलेंगे. कोई ना कोई तो बाहर का कोई ठप्पा तो लगा होगा उनकी सीटी पे. बिल्कुल। एंड दे आर वेरी कॉम्पिटेंट. सारे ऐसे होते हैं कि उनका वर्क एथिक इस तरह का होता है कि 6 बजे सुबह आ जाएंगे राउंड करने, एंड यू हैव टू रिपोर्ट एट 6:45 AM. देयर इज नो एक्सक्यूज. इफ अ 65-year-old कंसल्टेंट कैन कम एंड दे आस्क यू कि आप 24 साल हो के आप जवाब दे दिया आपने, आप उठें आए 6:45 पे राउंड कराएं, उसके बाद आप जाएं 5 बजे. तो देयर वाज अ टफ डिसीजन, क्योंकि एज अ मेडिकल स्टूडेंट आई थिंक आई गॉट वेरी लेट बैक ड्यू टू द कोविड सिचुएशन. सारा दिन मतलब घर पे जूम लेक्चर लेना, इट्स आई डोंट थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट. सिर्फ लोग ऑन होके उसके बाद दे सो जाते थे सुबह 8 बजे. चल जब लो अपने थोड़ी ऊपर देर, आती है फिर पता चलता है, हैंड्स ऑन जब पता फिर लगता अपने है। ऊपर आती है. हाँ या बिल्कुल. तो उसके ऊपर आई नीड टू वेरी हैव अ ट्रू, टीजर ट्रेलर ऑफ व्हाट्स अबाउट टू कम इन द नियर फ्यूचर. 20-25 साल भी तो काम करना है ना एज अ डॉक्टर. एक बिल्कुल। साल काम करके देखते हैं, मजे करते हैं. क्योंकि एंड द डिसीजन फॉर गेटिंग इनटू AQ, क्योंकि AQ के 100 hour वर्क वीक्स इज अ थिंग एंड वी फेस्ड इट. हमारी कोई जिंदगी नहीं बची. लेकिन मेरा एक थॉट प्रोसेस ये है कि आप जितना मतलब इफ यू हैव सीन द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट, तो आपको फिर बाकी चीज़ें ना आसानी लगेंगी. अगर आप बैटल हार्डन हैं, बैटल स्कार्ड हैं, तो आपके ऊपर कोई परेशानी मुश्किल नहीं लगेगी आपको. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. बाकी डॉक्टर उमर बता सकते हैं अपने एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग टू सिविल एंड हाउ वाज हिज हाउस जॉब. That's true. सो बेसिकली मेरा तो सिविल का एक्सपीरियंस था. एंड इन दोज 12 months ऑफ सिविल मैंने जो है ना बड़ी एक वैरायटी की. मेरी जो सर्जिकल का वार्ड था वो सर्जिकल वार्ड 4 था. अगर कोई हमारी ऑडियंस में सिविल हॉस्पिटल के होंगे सो दे नो. एंड देन आई हैड SIUT एंड उसके बाद मेडिसिन वन और कार्डियोलॉजी. सो जो मेरा SIUT का एक्सपीरियंस था वो बहुत यूनिक था. और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आई कुड रिलेट. when I was choosing urology, everybody was telling me, and I asked my senior, should I go for SAUT urology? And they were like, no, you won't have a life. 80 hours work per week है, क्या करोगे ये वो. But I was like, nahi, I want to see urology and I want to see SIUT because I want to get into a system. So this philia of a system is, is very real, as Noman and Zain could relate. Ki you do want to get into a system. So SIUT would not be as great as AKU, but compared to civil, it was like 10 times better. So there was that feeling. As far as transition is concerned, so basically when you get into house job, you become a doctor, and you have responsibilities. So initially you're taking things very lightly. You're like, अच्छा ठीक है ना, 2 घंटे बाद vitals लेने का बोला है, what's the deal? Scut work है, मैं नहीं कर रहा. But at the end of those 12 months, you tend to start realizing in which patients do you actually need to monitor. Like, I remember we had a patient for whom a resident said to monitor glucose. वो hypoglycemia में जा रहा था, random blood sugar उसकी monitor करें. And a friend of ours, a colleague of ours, just missed one reading, and the patient had a random blood sugar of 40, hypoglycemic shock. And और फिर वो कंडीशन इतनी वर्सन हो गई कि आपको रियलाइज होता है कि यार a simple work should be done by staff, obviously, yes, could hold so much meaning to it. So the entire experience in civil was very different for me. It wasn't
a lot about protocols. In fact, ये उसका एक disadvantage है. It was so much about running for CT scans and not having to get CT scans. अब आपके पास एक patient है acute pancreatitis का, complication develop हो रही है, and you're like, we need to get a CT scan done. And surprise, Civil doesn't have a CT scan machine since last 3 years. So ये frustration होती थी, and then you got to know about the public setup. I had a taste of good setup in SIUT where everything was very smooth. You needed to call and your CT scan date was done. Everything was free of charge. बहुत protocols वो लोग follow करते थे. So I feel that मेरा civil का experience भी मुझे बहुत ज़्यादा याद इसलिए भी आता है because of the patient load that was massive, and when we had our M calls, emergency calls, so trauma बहुत आता था. As Mohsin mentioned in his shuru mein, that all of the trauma came to civil. So my first surgery that I scrubbed in, I still have the video, and it was a wound. It was a gunshot wound that was going through entry site, uski fourth intercostal space left थी laterally, और sixth intercostal space से वो exit कर रहा था. My first surgery, X-lap, and all those intestines are in my hand, and we are looking for perforations, and it was funny. हमने इफ्तारी में, it was Ramzan and we just had watermelon, so patient was from Sangad, गोली लग कर आई डायरेक्ट बेड के ऊपर 8 घंटे का सफर कर, and we are seeing the entire gut is contaminated, and nephrectomy भी सामने सामने, diaphragm repair हुआ. So civil had its own pros for me. For instance, I wanted to know, if I have this thing in me to become a surgeon. So that was very that played a role, because the hands-on was great, and it's my first day, and my resident tells me to put the suture. So the hands-on experience was pretty great in civil, but there were again cons associated with it. You had to run for things that you aren't supposed to. CT scan किसी डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो उसके लिए भागे. You had to do vitals, which was a nightmare at times. 10 patients और सबके vitals करने तो imagine नहीं होता था. Sampling करनी पड़ती थी. So उसके cons हैं, but मेरे लिए pros भी थे. But the transition thing where we started from is you really learn that no matter how much GPA you had, what step 1 score you had, अगर आपको अपने patient की फिक्र नहीं है ना, तो you can be a very good academic person, but डॉक्टर शायद आप इतने अच्छे ना बन सकें. So I think थोड़ी सी लंबी कर दी है, but that is it. Over to you, Mohsin. बिल्कुल 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 उमर. मैं थोड़ी सी, अब जिस तरह इन्वायरमेंट की बात हुई ना, मैं थोड़ा सा डाउ के इन्वायरमेंट की बात करूंगा, क्योंकि अभी रिसेंटली हाउस ऑफिसर ज्वाइन किए हैं डाउ हॉस्पिटल के अंदर. सबसे बड़ा जो इशू है ना, वो ये है कि ना लोगों को अपनी जेडीज नहीं पता, जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं पता, ना स्टाफ को पता है, ना हाउस ऑफिसर को पता है, ना पीजी को पता है. देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि किसी ना किसी के अंडर आती है ना. एक चीज है कि ना भाई एक बंदा ये काम करेगा, एक बंदा ये काम करेगा, इस तरीके से टीम वर्क चलता है. तो मेरे डिफरेंट वार्ड्स में रोटेशन लगी. मैंने जनरल सर्जरी भी किया, मैंने ईआर भी किया, मैंने यूरोलॉजी किया, न्यूरो सर्जरी किया, ऑर्थोपेडिक्स भी किया, मेडिसिन, और हमारे क्योंकि 1 मंथ के माइनर्स होते थे और हमें तो वो मैं करता था. तो हर जगह पर ना वर्क एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंट था. कुछ जगहों पे टीम बिल्कुल ऐसी एक्टिव होती थी कि ना सब एक साथ मिलजुल के काम करते थे. पीजीज आपके साथ चल रहे होते थे. वो तुम ये वाले पेशेंट्स देखो, ये थोड़े स्टेबल पेशेंट्स हैं, मैं थोड़े अनस्टेबल पेशेंट में आई जा रहा हूँ, उधर आउट करने जा रहा हूँ, ताकि वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हो. इस तरीके से काम जल्दी हो जाता है. कुछ जगहों पे ये होता था, कुछ पीजी बोलते थे चलो मोहसिन हम साथ ही चलते हैं. अब वो बैठते थे, वो मुझे ऑर्डर बोलते थे, मैं बैठ के लिख रहा होता था, हाँ भाई चलो इसका ये लिखना. इससे क्या हुआ, इससे पूरा डे हुआ, हम रात को 2 बजे तक राउंड कर रहे हैं. ठीक है. अब उस राउंड करने की वजह से क्या हुआ कि ना जो हमारे पास पेशेंट, मैं जो करता था, मैं जज करता था पेशेंट की स्टेबिलिटी से, कि मैंने किस पेशेंट को कितना टाइम देना है. भाई एक पेशेंट है, वो स्टेबल बैठा हुआ है, यंग है, ठीक है, उसको मैं बस हर 2-3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद मैं जाके उसको मिल सकता हूँ. उस सेट में उसके पास मैंने देखना है उसकी इन्वेस्टिगेशन चली जाए, उसकी लैब्स हो रही हो, क्योंकि डाउ मुझे स्टार्ट लाइक दे बेसिकली वो सारे वाइटल्स भी वही करते हैं, मेडिकेशंस भी उन्हीं को करना होता है. यहाँ पर पोर्टर्स होते हैं जो कि ब्लड सैंपल को दिया जाता है, वो फिर जाके ब्लड बैंक वगैरह आते हैं. जो पास यूनिट रिसेप्शनिस्ट होते हैं, जो कि बेसिकली बेड अवेलेबिलिटी का काम है, बेड अवेलेबल है या नहीं है आप उनसे पूछते हो. कम्युनिकेशन के तौर पे पूरा चल रहा होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता, वो बेचारे खुद ही सारी ख्वारी कर रहे होते हैं.
इसी तरह ब्लड बैंक आता है, कभी आपके पास पेशेंट आ गया, ठीक है, आपने उसके लिए ब्लड चाहिए, आपको डेंगू का पेशेंट है और बहुत सीवियर उसको क्या नाम है ब्लीडिंग हो गई है और उसका अराउंड 5-6 का हीमोग्लोबिन चल रहा है, ठीक है, यंग पेशेंट था, तो उसकी 5-6 का हीमोग्लोबिन चल रहा है। अब वो उसको ना ब्लड नहीं मिला, क्योंकि सबको जिसने अभी हाउस जॉब किया ना डेंगू का जो अभी आया था, तो कभी उसको हुसैनी भेज रहे हैं, कभी उसको दूसरे ब्लड बैंक भेज रहे हैं कि भाई ब्लड ग्रुप अरेंज हो रहा ही नहीं है, ए नेगेटिव तो अरेंज ही नहीं हो रहा आपके पास। तो इस तरीके से करके जो है ना वो जो जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं, स्टाफ भी मौजूद है हॉस्पिटल के अंदर, हर किस्म का प्रॉपर ऑक्यूपाइड है, लेकिन जो जेडीज है अगर प्रॉपर तरीके से डिसाइड नहीं होती ना, तो वर्क एनवायरनमेंट हो जाता है टॉक्सिक। एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट आपको बहुत कुछ सिखाता भी है और आपकी जिंदगी भी ले जाता है। यू डोंट गेट टाइम टू हैव चिल, आपको पता भी नहीं चलता, पूरा दिन गुजर गया, रात को सोने का टाइम हो गया, अब आप बैठे हुए हो, नींद भी नहीं आ रही क्योंकि सुबह राउंड करना है, एक अजीब सा सिनेरियो हो गया, कश्मकश में अब थोड़ी सी नींद लगी, पेशेंट खराब हुआ, आपको कॉल करके बुला लिया कि वो पेशेंट खराब हो रहा है, देखो अब आप खड़े हो पीजी को फोन कर रहे हो, सर वो मेरा पेशेंट जो था ना उसका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, उसका ब्लड प्रेशर मैं क्या करूँ, बोलते अच्छा चलो तुम ये करो, ठीक है, पेशेंट एक्सपायर भी हो जाते कभी कभी, पेशेंट एक्सपायर हो गए, आप वहां पर खड़े हो, अब आपको डेथ डिक्लेरेशन करनी है, ओजा में ऐसा कम होता है वैसे, ठीक है, क्योंकि पेशेंट फ्लो कम है ना, अब पेशेंट फ्लो कम है तो डेथ इतनी नहीं होती है, ठीक है, हमारे जैसे मेरी कॉल वाले दिन 1 या 2 डेथ हो जाती थी, अल्लाह माफ करे वैसे, लेकिन वो सारे आईसीयू में या फिर उस तरह के वहां पर पेशेंट्स होते थे जो कि ऑलरेडी डेथ बेड पे हो, वही 60-70 इयर्स ओल्ड है, सीवियर सेप्सिस पे जा चुके हैं, 3/15 का जीसीएस चल रहा है उनका, तो इस तरह के पेशेंट्स होते थे जो कि खास तौर पे मैंने डेथ डिक्लेरेशन की है। कभी कभी कोई यंग पेशेंट भी होता था, वो खराब हो जाता था। ये तो हो गई जो कि जाहिर सी बात है, बच्चे जब जाएंगे ना तब उनको रियलिटी का पता चलेगा, या तो डर ही आएंगे, फिर वो ज्वाइन ही नहीं करेंगे हाउस जॉब। तो बात करते हैं कि जो मेजोरिटी स्टूडेंट जो है ना वो एकेयू के क्वेश्चंस आए हुए हमारे पास, तो नौमान या जैन में से अगर कोई हमें किसी प्रिपरेशन के बारे में बता दे, जिस तरह मुझे याद है 2020 के अंदर ना मैं प्रिपेयर कर रहा था, ठीक है, मैंने अपने लिए स्टेप 2 सीके और सीएस की बुक ली थी, ठीक है, जो वो फर्स्ट एड की तरह की बुक थी, मैंने वो ली थी, मैंने अपने पास सारी वीडियोस जमा कर ली थी और मैंने अपना एक प्रिपरेटरी शेड्यूल बनाया था, मतलब मैं भी आगा खान का टेस्ट दूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं दे पाया, मैंने दिया ही नहीं था क्योंकि मैं बिजी था अपने ये एग्जाम ही चला रहा था उस टाइम पे, तो उस टाइम पे मुझे एग्जाम देने का टाइम नहीं था, बट मेरे दोस्तों ने दिया, उसमें से कुछ की सिलेक्शन हुई और उन्होंने बताया नहीं मुझे, उनके स्नैप से पता चला क्योंकि लोगों को नज़र लग जाती है, ये लोगों का एक कॉन्सेप्ट है। तो प्रिपरेशन के ऊपर बात करते हैं एग्जाम्स के हवाले से कि एकेयू के अंदर खान हॉस्पिटल जो है आपके पास, तो कब होता है उसका एग्ज़ाम, ठीक है, उसके टेस्ट में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और कौन कौन दे सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, थोड़ी सी डिस्कशन इस पे हो जाए। So like, Okay, so, अच्छा नुमान आप बोलें। हाँ, रियली बेसिक स्टफ ये है क्या, इट यूजली स्टार्ट्स अराउंड 1 जनवरी, तो 6-7 महीने पहले इन लोगों का एक ऑनलाइन ऐड आता है, तो ये आप लोग को एप्लीकेशन भरना होता है, यू हैव टू फिल इन योर फॉर्म, सीवी, एंड देन उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट करना होता है। देन उसके बाद टेस्ट प्रिपरेशन का, आई व्हाट आई रियली बिलीव, आई नो मेरे साथ एक्यू में काम करने वाले थे जिन लोगों ने बहुत मेहनत की थी, एंड दे डिजर्व इट, एंड वो वहाँ पर थे, दे रियली वर्क हार्ड फॉर इट। इसमें ये था क्या, व्हाट आई डिड, आई बिलीव इट वाज प्योर लक। मैंने ऐसे कोई प्रिपरेशन की नहीं थी, आई जस्ट सिंपली डिड द पास पेपर्स, और जो मोस्ट कॉमनली यूज रिसोर्सेज जो होते हैं वो मास्टर द बोर्ड है, सैमसंग फॉर फैमिली गाइड वाले, बट आई रियली डिडंट यूज देम। सो व्हाट आई बिलीव क्या, luck also plays a really good part in it, and अच्छे से अच्छे पढ़ने वाले, आई एम नॉट अ रियली गुड स्टूडेंट दो, अच्छे से अच्छे पढ़ने वाले did not clear the test. So Zen would share this experience, वो आपको कुछ ज़्यादा सही बताएंगे। या जैसे नमान ने बोला कि अच्छे से अच्छे पढ़ने वाले, so we have toppers, we exactly if I remember 65 से 70 people ने लियाकत नेशनल से gave खान का test and only 3 of them got shortlisted and 2 of them got further shortlisted after the interview. So और हम जो 2 हुए थे मेरे साथ, मेरा एक फ्रेंड ही था, we weren't toppers at all, हम तो बिल्कुल भी ना सोच सकते थे कि हमने कभी 4 GPA ली हो, या I think it's more of a overall kind of a CV. They are looking for a versatile person who can fit in the program, who can do different things. आपकी CV एक जगह डायरेक्टेड होगी तो no programs would want you. अगर आपकी CV multiple things करती हो and you have things, मतलब काफ़ी ज़्यादा versatility they like
आपने रिसर्च भी की हो, यू हैव electives as well, and you can tackle day to day scenarios as well. Ethicals क्योंकि बहुत पूछे थे हमारे इसके अंदर. बाकी वही स्टार्ट हुआ था जून से अगस्त के बीच में. एक डेट होती है व्हेन दे बेसिकली ओपन द फॉर्म्स, एंड उसके बीच में ये बता देते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा. फिर वो हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था, इफ़ आई कैन रिकॉल करेक्टली, जुलाई या अगस्त में हुआ था. एंड इंटरव्यू हमारा अक्टूबर या दिसंबर के बीच में कहीं November, हुआ I था. think. Yeah. हाँ, नवंबर में हुआ था. तो ये काफ़ी चीज़ें ना प्री हैंड हो रही होती हैं बिफोर आपका मेड स्कूल भी चल रहा होता है, एंड आपके बीच बीच में इंडक्शन भी चल रही होती है. द रिसोर्सेज आई यूज, यहाँ पे तो लोग बहुत पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ जो लोग आए थे, दे हैड गिवन स्टेप्स. काफ़ी सारे एमडी भी थे. मतलब दे वर ECFMG सर्टिफाइड एंड दे वर वेटिंग फॉर द मैच प्रोसेस. मैंने तो कभी कुछ स्टेप नहीं दिया, ना मैंने कभी कुछ सोचा था. एंड आई ऑल्सो थिंक कि लक बहुत ज़्यादा काम करती है. However, I did study for the test. मैं नहीं बोलूँगा कि मैं बिल्कुल ऐसे ही उठ के चला गया एक दिन और मेरा हो गया, मेरी सिलेक्शन हो गई. आई मेड अप माई माइंड कि मुझे AQ में करनी है इन जनवरी 2020, जहाँ तक मुझे याद है. एंड क्योंकि कोविड आ गया था, कोविड की वजह से मार्च में ना हमारे मेडिकल स्कूल बंद हो गए थे. तो उस वक्त मुझे टाइम मिला था. आई स्टडी फॉर एटलीस्ट 3 to 4 months फॉर दिस टेस्ट. उसके अंदर मैंने सारी बेसिक मेडिसिन रिवाइज की थी. आई मेड अप माई कॉन्सेप्ट्स. PNB की वीडियोस देखी थी, द बोर्ड्स एंड बियॉन्ड, द रिसोर्स पीपल यूज फॉर USMLE. उसकी वीडियोस और कैप्लन कुछ देख लिया था. फिर यूट्यूब में देयर इज दिस डर्टी USMLE चैनल. उसमें से बेसिक जो चीज़ें मेरी लैक करती थी, इफ़ आई थिंक कि मेरी CVS सही नहीं है, एरिथमियाज मुझे नहीं आते, हार्ट ब्लॉक्स मुझे नहीं आते, आई यूज्ड टू जस्ट सर्च थिंग्स अप ऑन यूट्यूब एंड जस्ट सी, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता था. फिर बाकी मास्टर द बोर्ड, देयर इज दिस वन रिसोर्स आई यूज, एक कॉनराड फिशर की किताब है. और बाकी सैमसंग वाली मैंने यूज़ नहीं की थी क्योंकि मैं देख के उसका ना, मैंने बोला डेविडसन पढ़ूँ, ये पढ़ूँ, मैंने कहा आई डोंट हैव इनफ टाइम. मास्टर द बोर्ड की थी एंड आई जस्ट बेसिकली वेंट थ्रू द वीडियो लेक्चर्स और आई गॉट थ्रू. और साथ में ज़रूर AQ की इंटर्नशिप पास पेपर एज वेल, क्योंकि आप जब तक पास पेपर्स नहीं करेंगे, यू वोंट बेसिकली गेट टू नो कि आप किस तरह के सवाल आते हैं. देयर इज ऑल्सो दिस वन रिसोर्स, आई एम फॉरगेटिंग, एक पास पेपर की किताब है विच इज़ कॉल्ड प्री टेस्ट. मेडिसिन की मैंने की थी वो उसके अंदर देयर इज दिस, जो क्वेश्चन उसके डिफिकल्टी लेवल है, दैट्स वेरी टफ. बहुत मुश्किल सवाल होते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए बहुत अच्छे हैं. इफ़ यू थिंक यू आर लैकिंग इन सम सिस्टम एंड यू प्लान टू डू हाउस जॉब इन आगा खान, आप प्री टेस्ट करें, बेसिकली टेस्ट करें, अपनी नॉलेज को टेस्ट करें, रीड एनीथिंग, कोई भी रिसोर्स यूज़ करें, बस अपने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. और क्योंकि जो हमारा टेस्ट है दैट वाज ओवरऑल बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ एवरीथिंग. सारे सिस्टम्स पूछे थे, मेडिसिन उसके अंदर भरा पड़ा हुआ था, देयर वाज उसके अंदर गायनी भी था, ऑब्स भी था, सर्जरी भी था, पीड्स भी था, एंड मेडिसिन भी था. एंड You इट have वाज English बिफोर too. आवर पेपर्स. या इंग्लिश भी एज वेल. English too. हमारा इंग्लिश का भी पोर्शन होता है उसके अंदर, प्लस GK एज वेल, इफ आई कैन रिकॉल करेक्टली. थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी था. General knowledge. अभी नहीं था, No, जनरल नॉलेज नहीं general था, knowledge. इंग्लिश का था. फिर Yeah, इंग्लिश but था the उसके English अंदर. questions were really tricky. They were Yeah. tricky. हाँ, इंग्लिश क्वेश्चंस वर रियली ट्रिकी. मुझे भी थोड़ा सा हो रहा था कि यार कि इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. लेकिन वो आप कितनी प्रिपरेशन करेंगे, मेडिसिन के पढ़ने के साथ आप इंग्लिश की भी प्रैक्टिस करेंगे, तो इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल आप सब चीज़ें मतलब 2-3 महीने में कवर करें. उसके बाद फिर इंटरव्यू के लिए आई यूज दिस कॉनराड फिशर की किताब है, द 60 एथिकल केसेस, इफ आई कैन रिमेंबर. वो मैंने पढ़ी थी. आई बेसिकली 2-3 दिन लगा के मैंने वो पढ़ी थी एंड इट हेल्प मी अलॉट. उसके अंदर एथिक्स के रिलेटेड सारे सवाल हैं कि किस तरह, हाउ पेशेंट प्रेजेंट्स एंड हाउ, व्हाट इज़ योर ड्यूटी एज अ डॉक्टर, आप किस तरह करेंगे उसको डील. और जब हमारा टेस्ट भी हुआ था, देयर वर 8 स्टेशंस एंड ऑल ऑफ देम हैड एथिक्स. एक में ये था कि आपका सीनियर आपको छुट्टी नहीं दे रहा, एक में ये है कि पेशेंट के अटेंडेंट ने आपको मारना पीटना शुरू कर दिया, आप क्या करेंगे. तीसरे में ये था कि आपके सर्जन, आपके कंसल्टेंट से गलती हुई है, उसने ऑपरेट किया, एक पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में था, उसको ऑपरेट किया, द पेशेंट एक्सपायर्ड ऑन द टेबल एंड यू वेंट ऑन फेसबुक एंड यू रोट अ होल थिंग अबाउट इट ऑन फेसबुक. आपने सोशल मीडिया पे किया. अब उसने पूछा कि वेयर थिंग्स वेंट रॉन्ग. दिस वाज अ होल सिनेरियो दैट वी हैड टू डिस्क्राइब कि कहाँ गलती किससे हुई, विच इज बेसिकली टेस्टिंग ऑल ऑफ योर. पढ़ाई से तो लिंक नहीं करते. देयर इज दिस कि आप एज अ डॉक्टर डू यू हैव एम्पैथी एज वेल. आप किस तरह रिएक्ट करते हैं सिचुएशन में, हाउ टू टैकल थिंग्स वेरी डिफरेंटली. क्योंकि आई थिंक ये चीज़ें, इफ़ यू प्लान ऑन गोइंग और बेसिकली गेटिंग इंटरव्यूड फॉर US के कोई प्रोग्राम्स में, दीज थिंग्स हेल्प यू अलॉट. अगर आप एथिकल चीज़ें करेंगे एंड यू वर्क एज अ डॉक्टर फॉर 1 year, आपको काफ़ी ज़्यादा आपका ना स्कोप ब्रॉडन होता है कि विच फील्ड इज़ सूटेबल फॉर यू. मेडिसिन सही है, सर्जरी सही है. इफ़ यू आप सर्जरी का सोच रहे हो, आप थिएटर में आप 14 घंटे खड़े हो, उस दिन आपने डिसाइड किया यार नहीं, सर्जरी मैं नहीं कर सकता, आई कांट वर्क लाइक दिस, आई कांट वर्क लाइक दिस फॉर द एंटायर लाइफ.
मुझे जिंदगी एंजॉय करनी है, एंड 14 विच घंटे इज के बाद दूसरी सर्जरी भी इंतजार कर रही है। बिल्कुल 14 घंटे की। आई रिमेम्बर, आई रिकॉल, मेरा एक रेसिडेंट था, ही वेंट इन द ओटी एट 8 AM इन द मॉर्निंग। मैं पेशेंट सारे करके मैं घर चला गया 6 बजे, उस दिन 6 बजे इवनिंग। अगले दिन सुबह मैं 7 बजे आया हूँ, वो सुबह 8 बजे OR से निकला है। उसके बाद वो बोल रहा था मैं OR से निकल के 2 घंटे सोया था, अब मैं वापस OR में जा रहा हूँ क्योंकि वो जो केस हमने लिया था उसकी 16 घंटे की सर्जरी हो गई है, एंड वी हमारी जो OR की लिस्ट कल की थी वो अब हमारी आज तक चल रही है। तो बेसिकली इफ अ पर्सन इज मैरिड एंड ही इज स्टेइंग फॉर 40 आवर्स, या एंड दिस इज प्रीटी कॉमन, ये सिर्फ एक वो केस नहीं बहुत है। कॉमन है, बहुत कॉमन है। आप मतलब देयर इज नो लिमिट, आप जितना रगड़ सकते हैं इंसान को वहां पे आप मतलब आप 40 घंटे अगर खड़े हो के आप सर्जरी में खड़े हो, एंड फॉर अ हाउस ऑफिसर अगर आपको इतना शौक है आप 20 घंटे भी खड़े हो गए एंड यू स्टिल थिंक सर्जरी इज फॉर यू, देन या सर्जरी इज फॉर यू। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर्जरी इजंट फॉर यू ये सारे एक्सपीरियंस करने के बाद, तो देन या इट मेक्स यू लाइक चूज कि आपको आगे क्या करना है। एंड 1 year इज नॉट अ लॉट ऑफ टाइम, आप सारी चीज़ें देख लेते हो, आप टीजर ट्रेलर तो मिल जाता है आपको हर चीज़ का। आपको मेडिसिन अच्छी लगती है, आपको पोटेशियम मैनेज करना अच्छा लगता है, आपको हाइपोनेट्रीमिया मैनेज अच्छा करना लगता है, DKA प्रोटोकॉल आपको चलाना अच्छा लगता है, या आपको सर्जरी करना अच्छा लगता है, या आपको ER में काम करना अच्छा लगता है। डॉक्टर नोमान वॉज वन ऑफ द ओनली हाउस ऑफिसर इन आगा खान जिसने 5 महीने ER किए, बिकॉज ही लाइक इट सो मच। ओ भाई, अल्लाह। 5 महीने समथिंग ER इज समथिंग समथिंग आई डोंट नो कि PMC मानेगा कि नहीं मानेगा। करेगा नहीं करेगा। Yeah, लेकिन you get अब बिल्कुल। आगा खान में अब if I'm on the topic, अब आगा खान में there is this thing कि वो आपको ना सब स्पेशलिटीज में भी रोटेट कराते हैं। मतलब you can take psych as well, you can take ER as well, you can take a combination of breast surgery, plastic surgery, you can take multiple combinations, बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है क्योंकि वो आपकी ना एक there's उनकी ये थ्योरी है कि आपको बस सब चीज़ें ना एक टीजर मिल जाए before you get into the real thing, विच इज ऑनेस्टली ट्रू। वो 3 महीने जो एक स्टैंडर्ड बना हुआ है पूरे पाकिस्तान में, 3 महीने जनरल मेडिसिन करना है, 3 महीने जनरल सर्जरी करना है, फिर 3 महीने अलाइड करना है सर्जरी, फिर 3 महीने मेडिसिन अलाइड करना है। इस तरह नहीं है। आपका अगर शौक है इमरजेंसी में, आप आई डोंट ओझा थिंक में भी साल कर यही सकते है। हैं 5। हाँ ओझा ओझा में जो है ना वो इस तरीके से कि जैसे 1 मंथ की रोटेशन हमें मिलती है ना, तो आई डिड न्यूरो सर्जरी, यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, ER भी किया, साइक भी किया, गैस्ट्रो भी किया। सो आई हैड विच मल्टीपल इज गुड, वो, विच इज गुड, बट इसमें थोड़ा सा मैं, विच इज गुड। हाँ हाँ, थोड़ा सा मैं इसमें ना, क्योंकि बच्चे होते हैं ना काफी सारे, वो ये बोलते हैं मौसम में सिविल हॉस्पिटल में तो 3-3 महीने की होती है, यहाँ पर तुम्हारा 1-1 महीने का है। तो जहाँ प्रोज है वहाँ कॉन्स भी हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं उस पर बात करूँ, जो मैं ऑर्थोपेडिक्स की बात करूंगा। मेरा ऑर्थोपेडिक्स का वार्ड था 1 महीना। आपने ओपी, अब 2 हाउस ऑफिसर्स हैं, ठीक है, बिकॉज कम हाउस ऑफिसर से क्या नुकसान होता है, अब 2 हाउस ऑफिसर्स हैं, एक ने वार्ड संभालना है, एक ने OT जाना है, फिर OPD भी करानी है, फिर और मसला हो जाए तो वो भी करना है, वार्ड में अगर ज्यादा काम है तो वो भी। अब एक बंदा जो ऑर्थोपेडिक्स में है तो उसको एक्सपोजर लेने के लिए बहुत शंटिंग भी करते हैं। अब इससे ये जो 1 मंथ आई थिंक ना कुछ वार्ड्स में चलता है, जैसे हाँ इमरजेंसी 1 महीना अगर आप कर लो ना तो आपका तो दिन रात एक हो जाएगा। कुछ नहीं, मैंने 1 महीना इमरजेंसी किया था और यकीन करो कुछ नहीं पता था खाने का क्या टाइम है, बैठने का क्या टाइम है, कुछ नहीं पता। हालांकि इतनी ज्यादा हेक्टिक इमरजेंसी नहीं होती डाउ की एज कम्पेयर टू किसी भी इमरजेंसी को देखा जाए, बट इट वाज न्यू फॉर मी बिकॉज आई नेवर डिड इमरजेंसी इन एनी हॉस्पिटल। तो उस मैं अब जब डाउ में मैं करना शुरू तो उसमें ये हुआ कि बहुत अच्छे डॉक्टर्स मिले, they were really good, सही बताते भी थे काफी सारी चीजें। तो it was a team work sometimes, like it's your shift is about over, 8 बज रहे हैं, 8 बजने से 5 मिनट पहले ना एक पेशेंट आ रहा है, सही है, रिसर्च में, और अब उसका काम आपने शुरू करना है। ठीक है, अब वो आप जा ही नहीं सकते, अब उसका CPR भी करना है, फिर भी करना है, फिर इंट्यूबेट भी करना है, करेंगे तो सीनियर्स ही, बट यू हैव टू बी देयर, ठीक है, ताकि उसको शिफ्ट भी मिलेगा ICU में, देयर वन डॉक्टर शुड गो विद दैट। तो एक दफा हुआ था मेरी शिफ्ट 8 बजे ओवर होनी थी, 11 बजे गया था। ये है कि ना एक मंथ का भी अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, फिर 3 मंथ्स के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, बिकॉज यू नो इफ समवन वांट्स टू गो टू आइलैंड एज अ मेडिकल ऑफिसर, मोस्ट पीपल दे लाइक लॉट ऑफ पीपल दे चूज दैट ऑप्शन। तो वहां पर ये 3 वाली रोटेशन का इशू आता है, बिकॉज यू हैव टू डू 3 मंथ्स, जो प्रोटोकॉल है वो यही है, यू हैव टू डू 3 मंथ्स स्पेसिफिक फील्ड। अब वो कोई भी कर सकते हो, आप ER कर लो,
आप कोई भी कर लो। तो अभी कुछ लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मेडिकल ऑफिसर रहना चाहते हैं, किसी स्पेशलिटी में नहीं जाना चाहते, तो वो एज अ मेडिकल ऑफिसर उनको जो है ना फिर ये करना होता है कि 2-2 महीने की एक्स्ट्रा रोटेशन करनी पड़ती है। क्योंकि उमर, आई थिंक उमर से या किसी हॉस्पिटल में किसी से मेरी बात हुई थी, बिलाल अली मेरे हमारे एक सीनियर थे और उन्होंने हाउस जॉब की थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि ना तुम जो 1-1 महीने की रोटेशन कर रहे हो बहुत अच्छा है, बट आगे जाकर कैरियर में वो लोग 3-3 महीने की रोटेशन मांगते हैं। तो इसके बारे में किसी को नॉलेज है, अगर कोई इनपुट दे इस पे? जी बिल्कुल नॉलेज है। आई वाज जस्ट अप्लाइंग फॉर आइलैंड बोले दीज डेज, और बोले मैं बोले बोले उसमें देख के हाँ। मैं यही देख के हुआ था कि मुझे ये नॉलेज नहीं थी उस वक्त, उस टाइम पे। लेकिन अब आइलैंड का है एक ऑप्शन, लेकिन वो एक और होता है, प्रेस के थ्रू भी आप जा सकते हैं। तो उसके अंदर ये है कि देर देर रिक्वायरमेंट इज कि आप 3 महीने जनरल मेडिसिन करें, 3 महीने आप एलाइड मेडिसिन शो करें, 3 महीने जनरल सर्जरी करना जरूरी है। 3 महीने जनरल सर्जरी, 3 महीने मेडिसिन करना इज अ मस्ट इन इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर आइलैंड। उसके अलावा 3 महीने मेडिसिन अलाइड एंड 3 महीने सर्जरी अलाइड। अब दे हैव द स्पेसिफिक रोटेशन लिस्ट एज वेल, कि अगर आप किसी रोटेशन में, फॉर एग्जांपल इफ यू आर रोटेटिंग इन साइक एक महीना, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन आइलैंड। वो बोलेंगे आपको एटलीस्ट फॉर 2 months डू साइक, नॉट या फिर नॉट मोर देन 4 months, यू कांट डू मोर देन 4 months एंड नॉट लेस देन 2 months। इवन इमरजेंसी मेडिसिन आप 1 महीना नहीं एक्सेप्ट करते, वो बोलते हैं 2 महीने एटलीस्ट करो या 4 महीने से ज्यादा नहीं करो, 2 to 4 months, दैट इज द कट ऑफ फॉर अप्लाइंग देयर। वहाँ एसएचओ की पोजीशन खुलती है जिस पे आप अप्लाई करते हैं। यू जस्ट हैव टू बेसिकली शो आपने हाउस जॉब किया हुआ है, देन आप पीएमसी डॉक्यूमेंट भेजते हैं और आप साथ ओईटी के थ्रू अप्लाई करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो या वो मसला आता है जरूर, एक इफ यू वांट टू लैंग्वेज अप्लाई टेस्ट फॉर आता है। आइलैंड तो यस। हाँ। बिल्कुल ओईटी जो होता है लैंग्वेज टेस्ट, उसके साथ आपको अप्लाई करना होता है। यू हैव टू जस्ट सेंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स टू आयरिश मेडिकल काउंसिल, 6 से 7 महीने लगते हैं, फिर वो प्रोसेस होकर आ जाते हैं। देन यू अप्लाई थ्रू एन एजेंसी, वहाँ पे आप जॉब मिलती है, वो एसएचओ की पोजीशन खिलाई जाती है वहाँ बेसिकली। बिल्कुल। वहाँ पे 6 months या ईयरली कॉन्ट्रैक्ट पे आप असाइन होते हैं, वहाँ पे आप काम करते हो, एंड ये आपका ज़रूर ऑप्शन बंद हो जाता है अगर आप आगा खान जैसी जगह से कर रहे हैं, एंड इफ यू बेसिकली टेक 1 month या 2 month को कोई भी रोटेशन आप लेते हैं, आप चूज कर सकते हैं वाइजली। यू कैन बेसिकली स्विच बिटवीन रोटेशंस, यू जस्ट हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट। प्री हैंड अगर चीज़ें पता हो तो यू कैन डू इट इफ यू वांट टू प्लान अकॉर्डिंगली। So then I have a question like in relation to Ireland and AKU only. कि assume करें कि आप AKU जा रहे हैं because you know the system is good and you really like it, and at the back of the mind you do have a you know this thing of going to Ireland. So is it possible कि आप वहाँ पे AKU में for instance cardiology 3 महीने के लिए करें या neurosurgery, like क्या AKU आपको ये ऑप्शन देगा अगर आपके पास जहन में ये ऑप्शन हो कि यार मैंने जो है वो इस तरीके से आयरलैंड परस्यू करना है या यूके को परस्यू करना है? अच्छा, तो बेसिकली जब हमारा जब हमारी मेरिट लिस्ट बनती है, आगा खान में भी ये मेरिट लिस्ट होती है कि 80 सेलेक्ट होते हैं, एंड देन आप ऑडिटोरियम में होते हैं सेलेक्ट। 40 कॉम्बिनेशंस होते हैं मेडिसिन के, 40 होते हैं सर्जरी के कॉम्बिनेशंस, 80 क्योंकि इंटर्न्स होते हैं तो 40 कॉम्बिनेशंस होते हैं, एंड देन अकॉर्डिंग टू मेरिट लिस्ट दे आस्क यू कि आपको कौन सा कॉम्बिनेशन चाहिए। वो जो कॉम्बिनेशन स्लॉट होता है दैट इज फॉर इंटायर 6 months, 6 months के 2 स्लॉट होते हैं। आपको कॉम्बिनेशन चूज करने होते हैं उसमें। For example, if you take a combination of 2 months of neurosurgery, 2 months of general surgery, and 2 months of orthopedics, after doing 2 months of neurosurgery, you realize कि यार मुझे आइलैंड जाना है और मुझे एक और महीना करना पड़ रहा है, या मुझे जनरल सर्जरी 3 महीने करना है, मैंने 2 महीने लिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन रिक्वेस्ट द फेलो कॉलीग्स। आप हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था इन द AQ इंटर्न्स कि इफ एनीवन वांट्स टू स्विच जनरल सर्जरी विद मी फॉर ऑर्थोपेडिक्स इन दिस मंथ, and if the person agrees then you just go to the admin and then you basically switch that rotation वहाँ पे आके। it is very तो simple, आप किसी की जगह बस जाके रिप्लेस कर सकते हैं। आपके ऑफिशियल लेटर के ऊपर वो टेन्योर पूरा आता है 3 महीने का या वो इनफॉर्मल बिल्कुल होता है? बिल्कुल, नहीं, नहीं, अगर ये आप करेंगे जीएस, अगर आप किसी फॉर एग्जांपल आपने 2 महीने लिया था जीएस, लेकिन आपको दूसरे महीने जीएस का रियलाइज हुआ कि मुझे एक और महीने करना है, फॉर एग्जांपल आयरलैंड का, या आपको रोटेशन पसंद आ रही है, अगले महीने जो उस रोटेशन में इंटर्न आएगा या हाउस ऑफिसर आएगा, आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप मेरी ये वाली रोटेशन ले लें और मुझे जनरल सर्जरी करने दे दें। देन देयर इज अ Okay, so it बेसिकली म्यूचुअल depends on एग्रीमेंट बिटवीन द इंटर्न्स। या okay. So it depends on the availability के you know if the next person is willing to change or not. यस Okay. बिल्कुल। ओशा में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग, एक लड़का था ही रेडी
लाइक ऑर्थोपेडिक पहला पहला वार्ड था उसका। तो नेक्स्ट वार्ड एक लड़के एक स्टूडेंट एक हाउस ऑफिसर का ऑर्थोपेडिक्स था, तो उसने उससे आके बात की, भाई मैं ऑर्थोपेडिक्स लेना चाहता हूँ, अगर तुम मुझे दे दो। तो उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी, एचओडी से साइन, एचओडी मान गए, एमएस से आगे साइन करवाया, तो उन्होंने फिर 2 ऑर्थोपेडिक्स की रोटेशन की। तो ही हैड 2 मंथ्स ऑफ ऑर्थोपेडिक रोटेशन। तो उसने फिर ओके दूसरे वार्ड में किया। जस्ट हैव टू गिव जो अगर तुम नहीं कर रहे हो किसी भी वार्ड के अंदर, बिकॉज ऑब्वियसली इफ यू आर डूइंग एक्स्ट्रा मंथ इन समवेयर रोटेटेड देना, वहां कोई ना कोई हाउस ऑफिसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर आप म्यूचुअली एक्सचेंज करोगे, तो ये वाला जो हाउस ऑफिसर थे आपकी जगह जाएगा उस वाले हाउस रोटेशन के अंदर, आप जाओगे किसी और रोटेशन में। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ वार्ड ऐसे होते हैं जिसमें काम थोड़ा कम होता है, जैसे रोड थोड़ा कम है, और अगर वहां 5-6 हाउस ऑफिसर से इंडक्ट हो जाते हैं, तो फिर वो हाउस ऑफिसर डायरेक्ट जाके एचओडी से बात करें, तो एचओडी अगर परमिशन दे देते हैं कि हाँ भाई मुझे कोई मसला नहीं है, बिकॉज आई हैव इनफ हाउस ऑफिसर टू डील विद माय पेशेंट्स, तो यस यू कैन, आप जा सकते हैं। आप वो फिर साइन कर देते हैं उसमें, तो ऐसा होता है। ये बहुत कॉमन है, ये तो डाओ में होता है। अच्छा चलें, अब थोड़ा सा बात करते हैं काम के हवाले से। हमने काफी सारी बात की, सर्जरी की हम बात कर रहे हैं। मुझे पता है कि ना मेजोरिटी बच्चा जब फर्स्ट ईयर में होता है ना, उसको सर्जन बनना होता है, क्योंकि थर्ड ईयर में जाता है सबसे पहले वो स्क्रब्स खरीदता है, क्योंकि मेडिसिन के लिए तो आप लैब कोट और कोई भी कपड़े पहन लो तो आप चल जाओगे। स्क्रब्स खरीदता है थर्ड ईयर के अंदर, तो ऐसे ना लेने के पीछे वो भागता है कि यार मुझे हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिले, मैं जाऊं, मुझे असिस्ट करने को मिले, मुझे सर्जरी करने को मिले, मैं स्नैप लूं और मैं लगाऊं। अगर हम हैंड एक्सपीरियंस की बात करें, एज 3 हॉस्पिटल है हमारे पास, आगा खान है, टाओ हॉस्पिटल है और सिविल हॉस्पिटल, ठीक है। अगर हम बात करें उमर ने जैसे क्या नाम है, अगर वो बता तो सर्जरी जिसकी सर्जरी है, बोले वो माइनर हो मेजर हो, बहुत सारे स्टूडेंट हाउस ऑफिसर वो चाहते हैं कि स्क्रब इन होना। सिविल में तो ऑब्वियसली ज्यादा होंगे, ठीक है। जिसने अभी आगा खान के बताया कि अभी पूरा पूरा दिन नेक्स्ट डे तक कनेक्ट हो जाता था, वो जो भी की अपडेट होती थी। ऐसा जो है ना, वो ओझा में थोड़ा सा डिफरेंट। मैं चाहता हूँ कि ना उमर अगर इसके बारे में सिविल हॉस्पिटल के बारे में बात करें, फिर हम एक ही से बात करें, और फिर हम टाओ के वाले से बात करें, हैंड्स ऑन थैंक यू एक्सपीरियंस। मोहसिन हाँ Okay, hands-on experience. I'll keep it limited to it. So basically, जब the decision between Aga Khan and Civil, जिसके पास भी ये जाता था ना कि आपने decide करना है कि भाई if you want to go for Aga Khan or Civil. So basically, this was always brought up as as a as a pro of as something that's advantageous in Civil. Even आज जब मैं अपने रेजिडेंट से मिल रहा होता हूँ, जब हम सर्जरी की रेजिडेंसी कर रहे थे, तो हम काफ़ी सारे पोस्ट ग्रेजुएट से मिलते थे, और इसके ऊपर ज़ाहिर जैन और नोमान ज़्यादा बेहतर बताएंगे, जो हमारा परसेप्शन है इस बारे में उसको वो करेक्ट भी कर सकेंगे। लेकिन एक तो मैं आपको परसेप्शन बताता हूँ कि वो क्या है, और फिर दूसरा मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो बेसिकली परसेप्शन तो यही था कि भाई सिविल में लोड बहुत ज़्यादा है, सिविल के अंदर ट्रॉमा बहुत ज़्यादा आता है, इतना अच्छा ट्रॉमा सेंटर बना हुआ है, तो वहाँ पे वर्क जो हैंड्स ऑन है वो भी ज़्यादा मिलेगा। तो इस परसेप्शन की वजह से जिन लोगों को सर्जरी परसू करनी होती थी या और एक्सप्लोर करनी होती थी, वो आते थे सिविल। अच्छा, इसके अंदर जो दूसरी बात है वो है कि आपको कितना हैंड्स ऑन मिलता है, ये 2-3 चीज़ों पे डिपेंडेंट है। सबसे पहली चीज़ तो आपकी अपनी विल है कि अगर आप खुद इंटरेस्टेड नहीं है सर्जरी में, स्क्रब इन होने में, तो हाउस ऑफिसर्स हमेशा एक्सेस में ही होते हैं। तो आप विलिंग नहीं होंगे तो कोई और स्क्रब हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर ज़्यादा लोग compete कर रहे होंगे या ज़्यादा लोगों को स्क्रब इन होना होगा, तो कभी कभार एक कंपटीशन की फिजा भी बन जाती थी। जैसे अगर आप हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स खोलेंगे और उसके अंदर आप रिव्यूज़ पढ़ेंगे, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं आप कंप्लेंट्स देखेंगे कि भाई फेवरेटिज्म होता था, मुझे स्क्रब नहीं होने दिया, मैं सुबह 8 बजे आई थी फिर भी स्क्रब नहीं हुई। तो ये मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं कि एक तो आपकी अपनी विल कितनी है, और दूसरा कि अराउंड कंपटीशन कितना है। बहरहाल अगर आप अपनी विल शो करते थे तो 3 महीने का टाइम होता है, ऐसा भी नहीं है कि इतने सारे रेजिडेंट्स हों, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल ही जाती है स्क्रब इन होने की, स्पेशली ऑन योर एम कॉल्स। इसके ऊपर एक एडवाइस, अगर तो मेरे जूनियर्स देख रहे हैं, तो एक एडवाइस मेरे सीनियर ने मुझे दी थी। उसने बोला था, उमर कभी भी ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर में तुम स्क्रब इन नहीं होना है। फॉर इंस्टेंस, अगर एक रूम में तुम्हारे पास अपेंडेक्टमी हो रही है और दूसरे रूम में तुम्हारे पास विपल्स प्रोसीजर हो रहा है, नाउ विपल्स साउंड्स अमेजिंग, राइट? पेनक्रियाटिक ड्यूडेनेक्टमी विद ऑल दोस एनास्टोमोसिस एंड स्टफ, इट रियली साउंड्स इंटरेस्टिंग, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम हमारा विपल्स में जाके खड़े होने का भी फायदा नहीं है। और मेरे यहाँ जब विपल्स हो रहा होता था, शरिया गजनफर साहब कर रहे होते थे खुद,
तो वो रजिस्ट्रार और सीनियर पोस्ट ग्रेजुएट्स ही इतने खड़े होते थे कि आपको देखने को ही नहीं मिलता था। और फिर जितनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती थी उसमें आप जो अनाड़ी है जिसने आज स्क्रब, जिसको हम जब गए तो हम दूसरी मरतबा अपने आप को स्क्रबिंग कर रहे थे, जो पूरा प्रोटोकॉल है। और कितनी मरतबा तो मैं जलील हुआ हूँगा, वो जो टेक्नीशियन होता है आपका हाथ नीचे चला गया दोबारा स्क्रब करे। और एक तो मसला ये कि टेक्नीशियन समझता है हाउस ऑफिसर से रूडली बात करना, मैं पैदा हुआ तो जब से हक लेकर आया हूँ, तो वो तो सुनाने की कोई ऐसी, हम है तो यूं खड़ा होता था, बस देख मेरे हाथ ऊपर है, फारिग खड़ा हूँ 3-3 घंटे फारिग खड़ा हूँ, लेकिन यूं खड़ा हूँ। लैप्रोस्कोपी में मैं क्या करूँगा, मैं तो सिर्फ आखिर के स्टिचेस करता था। तो मेरी एक एडवाइस जो मुझे मेरे सीनियर ने दी और जिसने मुझे बहुत हेल्प किया, वो ये थी आप हमेशा माइनर से माइनर ओटी में स्क्रब करें या माइनर ऑपरेशंस में स्क्रब करें। आप अपेंडिक्टमी में जाएं, आप हर्निया में जाएं, आप लैप कोली में जाएं, आप जो है वो जो इंसिजन एंड ड्रेनेजेस होती हैं उसमें जाएं, फोर्नियस गैंग्रीन करें। इस सब में आपको सही हैंड्स ऑन मिलता है और बेसिकली बाकी सब चीज़ें तो आप सीख ही लेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपने हाउस जॉब में स्विचर नहीं सीखा तो आप जो है ना वो पीछे रह गए। जो यहाँ नहीं सीखा वो आप पोस्ट ग्रेजुएट ईयर्स में सीखेंगे। तो एक तो ये मेरी छोटी सी राय है। तो पहले तो आपकी विल के ऊपर डिपेंड करता है और आप कितने स्मार्ट हैं इस बारे में। मैं जो है ना वो आगा खान अल्हम्दुलिल्लाह नहीं गया, क्योंकि मैं सिविल में भी सिर्फ 3 महीने जो मैं टाइम पे 8:30 बजे आया हूँ। बाकी मेरे लिए सुबह उठना एक मसला कि यार कैसे करते हैं डॉक्टर्स। और मैं फंस गया हूँ ये फील्ड, लेकिन मैं सोचता हूँ पूरी जिंदगी यार 6:30 बजे मुझे पहुंचना होगा, जिंदगी गई मेरी। तो मेरे लिए टाइम पे पहुंचना बड़ा मुश्किल। लेकिन जिस दिन मुझे स्क्रब इन होना होता था ना, मैं सुबह 8:15 बजे पहुंच जाता था। घर वाले, ट्रैफिक पुलिस सब परेशान, आज ही बनता जल्दी कैसे निकला। तो यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट। नंबर वन, यू हैव टू बी फ्रेंडली अबाउट इट। आपके दोस्त होंगे, आपने ये नहीं सोचना कि यार मैं किसी तरीके से ले लूँ। आप थोड़ा सा यकीन करें, आपको आज नहीं मिलेगा तो कल मिल जाएगा। अपनी दोस्तियां खराब ना कीजिएगा। दूसरा, इट डिपेंड्स ऑन द वार्ड दैट यू आर गोइंग फॉर, स्पेशली इन सिविल। देखें, if you're going for neurosurgery and you're expecting that you're going to get a lot of hands-on, no, it's untrue. If I recall the experience of my friends, that's not going to happen. वो कर क्या रहे हैं, वो क्रेनिएक्टमी कर रहे हैं, वो ट्यूमर रिमूव कर रहे हैं, वो इतनी चले क्रेनिएक्टमी तो वो फिर बोलते हैं कि एवैक्यूएशन जो है वो इतना कोई उनके नज़दीक इतना कोई बहुत ही अच्छा, कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं है, वो आपको बरहोल तो करने ही देते हैं। लेकिन अगर आपको स्क्रब इन होना है ना, तो फिर आप एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर लेस लाइफ थ्रेटनिंग, लेस कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज इन्वॉल्व। फॉर इंस्टेंस मैं यूरोलॉजी में था और SIUT के अंदर जो है ना बड़ा फिक्स्ड आपका OT का रूम लिखा हुआ था। सुबह सुबह OT नंबर 2 में मोहम्मद उमर है। अब उस OT में मेरी चॉइस नहीं स्क्रब इन होना, कंसल्टेंट बोलता था बेटा स्क्रब होकर आओ। तो ये SIUT का एक एडवांटेज था। और फिर वहाँ का टेक्नीशियन सिखाता बहुत था। मैंने सबसे ज़्यादा स्किल्स जो सीखी हैं वो S4 और SIUT में सीखे, लेकिन SIUT में खुद टेक्नीशियन खड़ा होकर सिखाता था। तो दूसरी बात है आपकी सिलेक्शन। अगर आप न्यूरो सर्जरी में जाएंगे आपको लेस लाइकली है कि आपको स्क्रब इन होने को मिलेगा एज कम्पेयर टू ऑर्थोपीडिक या यूरोलॉजी, जहाँ पे लेस कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज इन्वॉल्व होती हैं। तो मेरा व्यू ये आपको आसानी से मिल जाएगा। हम क्या कर रहे होते थे, पाइलोलिथोटमी करते थे, इतना बड़ा इंसिजन आता था पेट के ऊपर या जो आपकी ये जो लैटरल स्पेस है कॉस्टोवर्टिब्रल एंगल की तरफ 12th रिब स्पेस पे, इतना बड़ा इंसिजन आता था। आप सर्जरी भी देखें और आपने क्या करना है, आपने सूचर लगाना है, फैट लगाना है। तीसरी बड़ी चीज़ आप कर लोगे, आपको शीट लगाने दे देगा, वो बहुत मुश्किल है। तो ये दो चीज़ें हैं और मुझे लगता है कि सिविल का ये एडेड एडवांटेज है। अभी मेरा एक जूनियर गया आगा खान में, उसकी अभी अभी हाउस जॉब शुरू हुई है। तो उसका पहले दिन मुझे यही मैसेज आया था कि यार इन हिज ओपिनियन, अगेन नुमान एंड जैन खालिद साहब जो हैं वो इस प्रोसेस से गुजरे हैं, वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे क्योंकि वहाँ प्रोटोकॉल्स अच्छे खासे फॉलो होते हैं, रेजिडेंट्स भी होते हैं। तो मेरे एक जूनियर मुझे बता रहा था कि यार ही स्टिल थिंक्स दैट फॉर सर्जरी एंड फॉर सर्जिकल एक्सपोजर सिविल इज अ बेटर ऑप्शन। सो दिस दैट। इट्स अ रियली कॉमन मिसकंसेप्शन क्या AQ में आपको हैंड्स ऑन नहीं मिलता, और AQ में दे आर एक्चुअली पेइंग पेशेंट आपसे आपसे क्यों ट्रीटमेंट कराएंगे, आप सिंपल एक हाउस ऑफिसर से क्यों ट्रीट कराएंगे, बहुत कॉमन है। बट व्हाट आई बिलीव क्या अगर आप इफ़ यू शो दैट यू आर कॉम्पिटेंट इनफ, सही है, पेशेंट को, कंसल्टेंट को, योर सीनियर रेजिडेंट, यू गेन दैट ट्रस्ट, you do get a lot to do difficult procedures. एज इन मैंने इमरजेंसी में क्या नहीं किया होगा, आई हैव इंसर्टेड सेंट्रल लाइंस, लंबर पंक्चर किया है, बैक स्लैप डाला है, आई हैव डन एवरीथिंग इन इमरजेंसी जो लोग वार्ड में घूम घूम के किए हो। व्हाट हाउ वाज इट पॉसिबल? आई थिंक
I've gained the trust over all the consultants, senior resident on call जो होते थे, दिस सी ना क्या ये कर सकता है, मुश्किल होता है, ये मुश्किल होता है क्या, सिंपल एक हाउस ऑफिसर या इंटर्न को ये इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर क्यों दें? Agar if his life is risk, to the resident or the consultant will be answerable. But if you show your willingness, you do get it's हाँ ये there are pros क्या documentation बहुत ज़्यादा है, वो प्रोटोकॉल इतने ज़्यादा होता है, उसमें ही आपका आधा टाइम निकल जाता है. बट यू शो योर विलिंगनेस एंड योर विल पावर, आपको बहुत हैंड्स ऑन मिलते हैं क्यू में. इसके Then बोलो बोलो Yeah, नुमान okay. बोलो. So basically, अच्छा, Numan, you want to complete? नहीं बोलो. अच्छा, so basically बात वहीं पे आती है कि आप सीखना खुद कितना चाहते हैं. आप टाइम पूरा करने आते हैं, आपको स्टेप की तैयारी करनी है, आप हाउस जॉब किस मकसद से करें, डू यू वांट टू लर्न थिंग्स एज वेल. ये सारी डिबेट वहाँ पे होती है. अब आई वांट टू, मैं खुद जीएस को बहुत ज़्यादा, आई लाइक सर्जरीज बहुत ज़्यादा. मेरे साथ इतनी सारी रोटेशंस में ऐसे कोलीग्स थे जो न्यूरोसर्जरी के इतने बड़े फ़ैन थे. मतलब उन्होंने कोई मतलब अपने पूरे 5 साल एमबीबीएस में उनको 10-12 इलेक्टिव्स किए होंगे न्यूरोसर्जरी में, क्योंकि दे वर फैनेटिक्स, उनको बहुत अच्छा लगता था. अब फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू डू, अगर आप ये आप जा रहे हैं उस डिबेट पे कि आपको कितना हैंड्स ऑन, इफ़ यू आर विलिंग, इफ़ यू आर शोइंग इंटरेस्ट, आपको कितना हैंड्स ऑन मिलता है. सो बेसिकली AQ का ये प्रोसेस है कि आपको ना बहुत ज़्यादा ना सिस्टमिक चीज़ें सिखाते हैं. सबसे पहले तो आप आते हैं तो आप सबसे पहले छोटू होते हैं एक वार्ड के ना. हाउस ऑफिसर जो होता है उसको कुछ भी नहीं आता, वो बस एक मेडिकल स्टूडेंट है जो आ गया है. सबसे पहले तो आपको पेपर वर्क सिखाते हैं कि बेसिकली आपको चलना किस तरह है, विच इज़न्ट ऑनेस्टली रॉन्ग. कि आपको एक स्टेप वाइज प्रोसीजर से लेके जाते हैं कि आपको एस्केलेट करते हैं थिंग्स, कि आपको चीज़ें सही तरीके से किस तरह करनी है. आप अगर हाउस ऑफिसर होकर विपल्स के अंदर एनास्टोमोसिस कर रहे हैं तो कोई तीर नहीं मार रहे, क्योंकि आपको कुछ चीज़ आती नहीं है, आपने ट्रेनिंग नहीं ली हुई. इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, हु इज गोइंग टू बी आंसरेबल. आपने फॉर एग्जांपल अगर कर ली वो प्रोसीजर, आपने एनास्टोमोसिस कर लिया, आपने 2-3 स्विचर लगा के आपने भाई यहाँ से आंख वहाँ से जोड़ दी, आप, लेकिन यू आर नॉट लीगली बाउंड टू डू दैट स्टफ. आपकी ट्रेनिंग नहीं है. बात ये है आपको नहीं आता, क्योंकि आपने अगर अपेंडिक्स भी निकाल ली है तो दैट्स नॉट लीगली राइट. तो वहाँ जैसे अब सबसे पहले यही बात है कि आप फॉर एग्जांपल कौन से प्रोसीजर में जा रहे हैं. इफ़ यू आर गोइंग इन लैब अपेंडिक्स या लैब कोली में जा रहे हैं, या विपल्स में जा रहे हैं, या एंडोमेट्रियोसिस ऑफ द इंटेस्टाइन में जा रहे हैं, आप हेपेटोमा या लिवर रिसेक्शन सर्जरीज में आ रहे हैं, आप जा कहाँ पे रहे हैं. अब ऑनेस्टली जब बड़ी सर्जरीज होती हैं, विपल्स होती हैं, तो वो काफ़ी सारे बड़े सीनियर्स होते हैं, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती है. इट इज़ अ लॉन्ग सर्जरी, 7-8 घंटे की सर्जरी होती है, कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती है. उसमें आपको यूजली भी देंगे तो वो स्विचेस लगाने देंगे. मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने खुद शीट भी बंद की है, मैंने फैट भी बंद किया है, मैंने स्विचेस भी लगाए हैं, क्योंकि आपके इंटरेस्ट के ऊपर है. अगर आप खड़े होकर बोलेंगे कि मुझे आप दें, तो सबसे पहले आपको स्विचेस लगाने देंगे. आपको डायरेक्टली ये नहीं बोलेंगे भाई तू आंत निकाल, तो यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, ये निकाल के रिसेक्ट करके दिखाओ. दे वोंट डू दैट. एंड दिस इज ऑनेस्टली वेरी मतलब सिस्टमिक. और वो आपको एक पहले वो देखते हैं, पहले सूचर्स देते हैं, एंड देन दे बेसिकली एस्केलेट योर कि आप इंसिजन देना दिखाएं. स्काल्पल पकड़ाएंगे और बोलेंगे आप इंसिजन करेक्टली दें. तो कॉटरी करना सिखाएंगे, जो कि सारी चीज़ें मिली, सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, लेकिन इट ओनली टेक्स टाइम. आप रोज़ परसिस्टेंटली जाएं, आप बोलें. और यहाँ पे ये होता है कि वार्ड के अंदर काम इतना ज़्यादा होता है. इफ़ यू गेट डन विद योर वार्ड वर्क, तो आप जाके अपनी विलिंगनेस से, काफ़ी सारे लोग होते थे कि जो एक्स्ट्रा आवर्स रुकते थे, 4 बजे तक टाइम है, 4 के बाद रुकते थे, एंड दिस जस्ट स्क्रब्ड इन सर्जरीज. उनके क्योंकि एक था, उनकी विलिंगनेस थी. अगर आप 4 बजे आपका हुआ और आपका बस मीटर चल रहा, बस मैं घर जाऊंगा, तो आपको सर्जन नहीं बोलेगा कि भाई तुम आ, आपकी विपल्स में ज़रूरत है. तो इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल आपकी विलिंगनेस पे. एंड डाउन द लाइन मैं एग्री करूंगा डॉक्टर उमर की बात से. अगर आप 3 महीने आप स्विचर लगा रहे हैं, आपने उसके बाद 3 महीने फॉर एग्जांपल 6 महीने मेडिसिन किया, आपकी सर्जरी के जो स्किल्स हैं दैट डेवलप्स बेसिकली विद टाइम एंड विद फ्लुएंसी. आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, दोज आर बेसिकली रिफ्लेक्सेस. आप ये नहीं हो सकता कि मैंने खुद सर्जिकल रोटेशन इतनी ज़्यादा की है मेड स्कूल में, मैं करता था, उसके बाद कुछ और शुरू हो जाता था, मैं जाता था 4-5 महीने बाद मुझे नहीं आते थे लगाने, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस नहीं है. जब आप रेजिडेंट बनेंगे तो ये चीज़ें आ जाएंगी. दिस टेक्स टाइम. आप ये नहीं कर सकते 24 साल के हो के आपने अभी मेड स्कूल किया, आप बड़े बड़े कोई 30 मार्क खान हो, आपने सारी सर्जरीज कर लेनी है. आप
टाइम लगता है इन चीज़ों में। सुपर स्पेशलिटी होती है, सब स्पेशलिटी होती हैं। दीज बेसिकली पीपल हु डू विपल्स, उन्होंने सब स्पेशलिटी ट्रेनिंग की होती है। दे आर बेसिकली सर्जिकल ऑन्कोलॉजी फेलोज। उन्होंने जीएस के बाद उन्होंने ऑन्कोलॉजी के अंदर ट्रेनिंग की होती है 1 साल, हाउ टू रिसेक्ट ट्यूमर्स। तो उन्होंने बाल सफ़ेद किए होते हैं। वो इस तरह जब उन्होंने इतनी ट्रेनिंग ली है, तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप एक हाउस ऑफिसर होकर आप सारी चीज़ें कर लेंगे। एंड लीगली चीज़ें करना आना, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ खराब है, क्या चीज़ वेरी सही नहीं इंपॉर्टेंट। है, वो चीज़ें पता होनी चाहिए एज अ डॉक्टर, क्योंकि आखिर जान का है मामला। एंड आई नो कि आगा खान में इस तरह के पेशेंट्स आते हैं हु आर बेसिकली फाइनेंशियली स्ट्रांग। सिविल में आपका तबका वो आता है, रेडी वाला आ गया, कोई भी आ गया, तो अगर खुदाना खास्ता कोई चीज़ जाती भी है, तो कॉन्सिक्वेंसेस एज कम्पेयर टू आगा खान, मैंने खुद सिविल में रोटेट किया था, 1 महीने में आया था इमरजेंसी में। आई हैव सीन थिंग्स एज वेल। मैं इमरजेंसी के डॉक्टर सुरेश होते हैं आप लोग के इमरजेंसी में, डू यू एनी ऑफ यू नो? मैं उनके साथ रोटेट किया था, आई सॉ अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैंने देखा था कि क्या वहां पे हो रहा है, क्या लियाकत में होता है, क्या आगा खान में हो रहा है। एंड ऑनेस्टली आप इंसानी जान के साथ ना आपको एक वैल्यू करनी आनी चाहिए। ऑल्दो सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि पैसों वाले कि आप ज़्यादा करें, लेकिन आपको सही चीज़ का पता होना चाहिए, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। एंड विच ऑनेस्टली टेल्स प्रोटोकॉल्स आपको बताते हैं। एंड आगा खान के सर्जन ऐसा भी नहीं है कि कहीं जाने माने नहीं है। आगा खान से जो ट्रेन होते हैं, दे वर्क इन दे वर्क अब्रॉड, वो हर जगह काम करते हैं। दे गो एंड उनको कोई नौकरी नहीं मिलती और दे आर लेस ऑफ अ सर्जन। सिविल से भी बहुत अच्छे ट्रेन नहीं होते हैं। जो एक्सेप्शन स्किल्स होती हैं डाव के सर्जन्स की, वो किसी की भी नहीं होती। तो दैट बेसिकली डिपेंड्स कि आप पर्सनल, आपकी खुद विलिंगनेस कितनी है और आप क्या करना चाहते हैं आगे। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर मैं चलो अब ओझा की बात करते हैं। ठीक है, मैं पर्सनली जो है ना, मेरा डिसाइड नहीं था कि भाई हमने किस फील्ड में जाना है, क्या करना है ज़िंदगी में। जनरल सर्जरी की पहली रोटेशन मेरी जनरल सर्जरी की थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे बहुत मज़ा आया। मज़ा किस तरीके से आया कि ना, पेशेंट मैनेजमेंट थी। ठीक है, एक जीएस स्टार्ट में लेना ना, समझ लेंगे ना, बहुत सारे लोग नहीं लेते थे, बोलते थे यार पहले मेडिसिन कर लेते फिर हम जीएस ले लेंगे। बोलता नहीं यार, पहले मैं जीएस करूंगा। परसेप्शन ही बना हुआ था जीएस में जाओगे काम बहुत करूंगा, लाइफ थोड़ी वो हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं हाउस ऑफिसर है, अभी काम तो करना है, भागेंगे कैसे। तो हमारा ये होता था कि हमारी सर्जरी इतनी ज्यादा नहीं होती थी। ठीक है, कभी कभी हमारी लिस्ट बड़ी होती थी, जैसे कभी 20-25 पेशेंट्स की लिस्ट है, उसके अंदर लोकल केसेस ज्यादा होते थे। जैसे कोई आपके पास इनग्रोट टोनेल आ गया, तो ये सर्जरी। इसके अलावा हमारे पास जो सर्जरीज होती थी, हमारे पास फॉर एग्जांपल करनी है, जनरल सर्जरी की मैं बात कर रहा हूँ अगर, तो इस तरह केसेस अच्छे खासे आते थे हमारे पास। हमने लिटरली ना 2 पेशेंट कोलोन कैंसर के देखे थे, और एक ओल्ड पास होते हैं, तो यानी जिसको कोरोना कैंसर था, और एक और हमारे पास पेशेंट को हमने मैनेज किया, और वो काफी अरसे तक थे, उनका स्टोमा लगा, और फिर उसको हम लोग जाके पार्टिंग है, फिर उसका बीपी, पल्स, ये सारी चीजें देख रहे हैं, और फिर ओपीडी में जा रहे हैं। तो ओपीडी में एक नॉर्मल पेशेंट आ रहा है, फिर उसको फिर हम एडमिट भी कर रहे हैं, फिर हम मेडिकेशंस भी लिख रहे हैं। तो एक वर्किंग एनवायरनमेंट पूरा क्रिएट हुआ था जनरल सर्जरी के अंदर, स्टार्टिंग ऑफ दी हाउस जॉब में। तो उसके बाद जब मैं जिस वार्ड में भी गया ना, मुझे लगा वार्ड इतना क्यों है। मतलब में गया, डाउ की यूरोलॉजी है, बहुत अच्छे डिपार्टमेंट में, पेशेंट फ्लो अगेन ऐसा यूटी जैसा तो नहीं है, बट वहाँ पर डॉक्टर अमाद मिठानी है, डॉक्टर आसिम है, दोनों कंसल्टेंट है, बहुत अच्छे कंसल्टेंट है। तो वो लिंक करते विद आर रीनल ट्रांसप्लांट यूनिट, जो आपका यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट है, बट रीनल ट्रांसप्लांट यूनिट में आपकी हाउस जॉब नहीं होती है। बट यूरोलॉजी डिपार्टमेंट और वो क्योंकि थोड़ा सा सिंक करते हैं, कभी कभी आपको स्क्रबिंग होने का चांस मिलता था इन रीनल ट्रांसप्लांट। तो मैं रीनल ट्रांसप्लांट स्क्रबिंग किया, कभी डोल हो गया, कभी आपका पाइलोलिथोटमी, वही जो हम अभी केसेस डिस्कस कर रहे थे। जनरल सर्जरी में ये होता था, हमारे पास 10 से 12 लोग होते थे तकरीबन, हाउस ऑफिसर्स। ठीक है, अब पेशेंट आए, ठीक है, अब उसके अंदर एक यहाँ पर मैं उम्र की एडवाइस अगर मेरे पास होती काफी पहले, तो शायद मैं काफी कुछ कर रहा होता अभी। तो हमारी ये था कि यार बड़ी सर्जरी में स्क्रबिन होना है, ये क्या लैब कोली करते रहेंगे, मतलब हमें कुछ मिलने का ही नहीं, खड़े रहेंगे एंड में लाके थोड़े 2-3 सूचन लगाने को मिलेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट माइंडसेट डेवलप हुआ होता है एक यंग हाउस ऑफिसर का, जो कि अभी अभी इन हुआ है। तो अब पता भाई लैब कोली हो रही है, तो हमें पता है भाई वो तो हो ही जानी है, क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी उसके अंदर, तो हम जाते भी नहीं थे उसमें। उस ओटी में हम दूसरी कोई ओटी ढूंढ रहे होते थे, हाँ भाई इधर कुछ हो रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, हाँ इधर हर्नियोटमी हो रही है, इधर कुछ हो रहा है, चलो अब यहाँ आ जाओ। वहां पर देखते थे, वहां पर ऑलरेडी कोई ना कोई स्क्रबिन
सिस्टमेटिक ये होना चाहिए था, क्योंकि 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट है, तो उसके अंदर ये होना चाहिए कि ना भाई आप हाउस ऑफिसर्स को असाइन कर दो पेशेंट। भाई ये आपका पेशेंट है, ये हमारे पास आया है, इसको आपने प्री और पोस्ट ऑफ मैनेज भी करना है, और इसके सारे सीटी स्कैन से सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, सारी फाइंडिंग्स वगैरह, ताकि जब ओटी में बंदा आए ना उस पेशेंट के पास, तो उसको अपने पेशेंट के बारे में पता हो। तो ये एक मैंने एडवाइस दी थी अपने सीनियर्स को, मैं सर आप ऐसा कर ले ताकि मौका मिल जाए। उन्होंने देखो भाई, तुम अगर एफर्ट्स शो करोगे कि तुम स्क्रब इन होना है, तो आई एम वो बंदा हूँ जो कि इस चीज से अफेक्ट हुआ है कि भाई मैं स्क्रब होना चाह रहा हूँ, बट दूसरे लोग ज्यादा स्क्रब इन हुए। दूसरा रीजन ये था कि ना भाई मैंने डिसाइड ही नहीं किया था मैंने जाना क्या है कैरियर में, कि जनरल सर्जरी में जाना ही नहीं जाना है। इफ आई हैड डिसाइडेड, तो फिर तो मैं तो कुछ भी करके स्क्रब इन होता, कंसल्टेंट से बात करता, सर मुझे स्क्रब इन होने का चांस नहीं मिल रहा, सर प्लीज कुछ करें। दूसरी बात यह है कि ना यहाँ पर ना हिपैटोबिलियरी का सेपरेट डिपार्टमेंट है ओजा के अंदर। जनरल सर्जरी अलग है, हिपैटोबिलियरी अलग है, लीवर ट्रांसप्लांट टीम अलग है। इसके अलावा आप लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं, विपल्स हो गया, ये जितने जो वो हिपैटोबिलियरी डिपार्टमेंट करती है। मैंने बोला कि ना सर आई वांट टू ज्वाइन हिपैटोबिलियरी, बट वहां हाउस जो भी नहीं होती, तो ये थोड़ा बहुत एक था कि इनको जहां जहां हाउस ऑफिसर इंडक्ट करने चाहिए, जो कि ऑब्वियसली इतने सारे डिपार्टमेंट आपने बना दिए, तो यू नीड मोर हाउस ऑफिसर्स। मतलब अगर आपको डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट में पेशेंट मैनेज करने के लिए आपको कोई ना कोई बंदा चाहिए ना। आप सिर्फ मेडिकल ऑफिसर्स पे तो नहीं रिलाई कर सकते, वो शिफ्ट्स में होते, एक बंदा हो जो कि पूरे दिन की शिफ्ट करे, पेशेंट को मैनेज करे, या मैनेज ना करे एटलीस्ट आपको इन्फॉर्म करे कि भाई आपका पेशेंट है, उसको ये मसला हो गया, आप कंसल्टेंट को फॉरवर्ड फोन करके बताते हो। मैं तो फोन करता था डायरेक्ट कंसल्टेंट को, सर ये पेशेंट है, इसका ये मसला हो गया है, बताएं मैं क्या करूं। तो ओझा के अंदर पेशेंट फ्लो बहुत डिफरेंट था, और क्योंकि ट्रॉमा सेंटर नहीं है ओझा में है इमरजेंसी लिखा हुआ है बात, लेकिन है वो इमरजेंसी। अंदर अगर कोई पेशेंट है ना दिन के अंदर जिसको एक्सीडेंट हुआ हो, गन शॉट आया हो, ऐसा कोई चीज, तो दिन के अंदर तो कंसल्टेंट दे आर इन द हॉस्पिटल ना, तो फिर उस पेशेंट को मैनेज किया जाता है इन ओटी ओआर में। ठीक है, पहले वहां पर ट्यूब वगैरह अगर करना हो तो मैनेज में ईआर के मैनेज करके फौरन उसको करते हैं, बट देयर इज नो प्रॉपर ट्रॉमा सेंटर। रात के अगर 1-2 बजे कोई ना गन शॉट ही भेजना है, तो ये थोड़ा बहुत बेटर होता है इस एरिया के अंदर, खासतौर पे जहां पर ओजा है, जहां पर बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। आपका यूनिवर्सिटी रोड है, फिर उधर से हाईवे है, ठीक है, हाईवे से खासे एक्सीडेंट्स होते हैं, वहां से पेशेंट आते ही डाव है, डाव आया, डाव में पता चला भाई यहाँ पर तो कोई ओटी कोई पेशेंट को नॉर्मल अगर एक्सीडेंट हो एक्सक्यूजर्स लग जाते हैं, हल्के फुल्के लगा देते हैं, लेकिन अगर पेशेंट है उसको मैनेज ही ओआर में करना है, तो देयर इज अभी वो फैसिलिटी 24 आवर्ली नहीं है। जैसे 6 बजे तक मैं रुक के मैं कौन सी सर्जरी करूंगा जब होनी ही नहीं है। तो आई एम एट डाउ फॉर लाइक सुबह 8 बजे से 3 बजे तक हो, या 9 बजे से 3 बजे तक हो, 4 बजे तक हो, जो सर्जरीज हो रही हैं। अगर कोई सर्जरी लंबी भी चल रही है तो शाम 5 बजे तक चलेगी बस। तो न्यूरो सर्जरी में ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी थी, और वो बड़ी लंबी सर्जरी थी, मतलब लिटरली 9-10 बजे शुरू हुई है और 3-4 बजे तक चली है, क्योंकि वो प्रॉपर क्या नाम है, कभी नहीं था मुझे पता था कि ना भाई मेरी एक हाउस ऑफिसर गई हुई है और वो आई नहीं है, शी वाज पोस्ट कॉल। तो ऐसे जुनून में भी लोग मौजूद हैं, शी वाज पोस्ट कॉल एंड शी वाज स्क्रब्ड इन, क्योंकि उसको सर्जरी में जाना है, तो कोई और नहीं हो रहा था, तो उसने बोला मैं स्क्रब इन हो जाती हूँ। उसने मौके को अवेल किया, हम लोग मौके से बात टॉकिंग अबाउट मी एज अ बट ही डिडंट अवेल इट, और नाउ शो होना चाहता है। इतने लाख में पता ताकि लोगों को बहुत सारे लोगों ने जो उनको अपॉर्चुनिटी मिली उनको अवेल किया, बट आई माइट बी द पर्सन जिसको शायद मिली थी, बट प्रॉपर भाई वो कंपटीशन हो, टॉक्सिक माइंडेड हो, या जो भी हो, जनरल सर्जरी होता है, क्योंकि सर्जरी में हर दूसरे बंदे को काम भी करना है, वार्ड में भी काम करना है, हर जगह काम करना है, तो कंपटीशन की फिजा तो आम रहती है। सही है, कोई रिलेट करता है इन सारी चीजों से? आई थिंक बच्चे तो क्वेश्चन भी पूछ रहे काफी सारे है। तो मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था ना वो था इस तरीके का, यार यहाँ पर अगर स्क्रब इन होना है तो एक सिस्टम बनाना चाहिए। मैं सिस्टम बनाने पे जाता हूँ कि यार अगर स्क्रब इन होना है तो कंसल्टेंट को खुद इसमें इनपुट देना चाहिए, सर खुद बैठ के लिस्ट बनाए, हाउस ऑफिसर्स को बोले बेटा देखो तुमने दिन में इतनी जगह स्क्रब इन होना है, तुमने वार्ड में रहना है। हमारा होता था कि भाई 3-4 हाउस ऑफिसर ओडी में रहते थे, 2-3-4 हाउस ऑफिसर वार्ड में रहते थे, बाकी हाउस ऑफिसर ओपीडी में होते थे, या कहीं और होते थे, या पोस्ट कॉल होते थे। तो वो जिस तरीके से मैनेज करना होता था वो उस तरीके से मैनेज करते थे। तो मैं हमेशा सिस्टम बनाने की बात करता हूँ, मैंने सिस्टम बनाने की बात की, उन्होंने बोला बेटा पॉसिबल नहीं है, ये सिस्टम नहीं बन सकता। कह रहा भाई हम बोल दें अब वो बच्चा नहीं आया
तो फिर क्या होगा, फिर उस पेशेंट का कौन होगा इसका, कितने फड्डे होंगे। तो लेकिन जितना सिस्टम बनाने पे जाओगे उतना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा सिनेरियो। अच्छा, कुछ लोग सैलरी के बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल है बड़ा प्यारा, हाउ जॉब इन AKU इज देयर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस और मोर ऑफ पेपर वर्क ना। यहाँ पर मैं डाउ से शुरू करता हूँ, इसके ऊपर फिर बात करते हैं। डाउ के अंदर ना, क्योंकि स्टाफ काम कर रहा होता है मोस्टली, ठीक है, तो आपको सिर्फ उनको रिमाइंडर कराना होता है, आपने स्लिप्स बनानी होती है, पेपर वर्क भी करना होता है। हैंड्स ऑन डिपेंड करता है आपके ऊपर। द हाउस ऑफिसर हु इज वर्किंग, उसके ऊपर डिपेंड करता है उसको कितना एक्सपीरियंस लेना है। भाई किसी पीजी के पास इतना टाइम नहीं है फारिग, वो आएगा, हाँ भाई मैं तेरे को सिखाऊं, आ जा तेरे को मैं सिखाता हूँ पुलिस कैसे करना है, तुम्हें सिखाता हूँ NG कैसे करना है, तुझे आज मैं सूचर लगाना सिखाता हूँ। इफ यू वांट टू लर्न तो आपको आगे जाना पड़ेगा। आप खुद बैठ के ये नहीं सोच सकते कि ना भाई वो आपके कोर्स के अंदर है कि यार हाउस ऑफिसर को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करवाना ही है। तो डाओ के अंदर ऐसा है कि यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, और अपने जो सीनियर्स होते हैं वो सिखाना चाहेंगे अगर आप उनसे सीखना चाहेंगे। दिस इज माय इनपुट ऑन दिस। आप लोग क्या करेंगे? समझ में मैंने जो चीजें बोली है वो ऐसा आई थिंक, हाँ बात कर। अच्छा, तो बेसिकली अब हैंड्स ऑन डिपेंड करता है कि मतलब पेपर वर्क और हैंड्स ऑन, व्हाट डू यू मीन बाय हैंड्स ऑन? मतलब आप खुद सर्जरियाँ कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? मेडिसिन में हैंड्स ऑन इज बेसिकली गिविंग मेडिसिन, राइट? इन AQ मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सुनी थी कि पेपर वर्क कराते हैं, कुछ सिखाते नहीं है, कुछ ये नहीं करते, लेकिन जब मैं गया तो मैंने कहा ये तो टोटली डिफरेंट है सिनेरियो। आई स्टार्टेड विद मेडिसिन। इंटरनल मेडिसिन में ये था कि इन AQ विच इज़ नॉट अ रिसोर्स लिमिटेड हॉस्पिटल, वहाँ पे आपको टीटीसाइक्लिन भी मिल जाएगी, लिनाजोलिड भी मिल जाएगी, मेरोपेnem भी मिल जाएगी, आपको दुनिया जहाँ की इन्वेस्टिगेशन भी मिल जाएंगी। आप जो किताब में पढ़ेंगे, जो लेटेस्ट चीज़ें पढ़ेंगे, वो आप वहाँ पे अप्लाई कर रहे होंगे, विच इज़ वेरी नाइस। मैं तो हैरान हो गया था, वहाँ पे इतनी मेडिकेशंस की लिमिटेशन नहीं है, वहाँ इन्फेक्शियस डिजीज़ का डिपार्टमेंट अलग है, वहाँ हर चीज़ है, हर सब स्पेशलिटी है। एंड इन इंटरनल मेडिसिन, अब मैं वार्ड की बात करूंगा इंटरनल मेडिसिन के, फॉर एग्जांपल, वहाँ पे स्टाफिंग और नर्सिंग स्टाफ जो है वो बहुत प्रोफेशनल है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। कैनुलेशन, CPR, विद एवरी वाइटल चेकिंग, वाइटल मॉनिटरिंग, दे डू इट रेगुलरली, और बहुत हर 4 घंटे बाद आपको एक वाइटल शीट पे मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हाइपोग्लाइसीमिया में आ रहा है तो द कॉमन एरर्स डोंट अकर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होते कि आप हाइपोग्लाइसीमिक पेशेंट को आप मिस करते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेगुलरली चार्टिंग हो रही होती है इस चीज़ों की। हर 4 घंटे बाद आपके वाइटल्स लेंगे, यूरिन आउटपुट आपको बताएंगे। अगर 1 घंटे का फॉर एग्जांपल यूरिन आउटपुट कम होगा, सबसे पहले वो आपको करेगी, हम 2 घंटे से मॉनिटर कर रहे हैं, इसका है, यूरिन आउटपुट कम हुआ है, आप क्या करना चाहेंगे? 15 ml पर आ रहा है, आप क्या करेंगे? तो वहाँ इंटरवेंशन इज़ वेरी प्रॉम्प्ट, बहुत ज़्यादा जल्दी है। और हैंड्स ऑन की जहाँ बात करें, इंटरनल मेडिसिन की अगेन मैं बात करूँगा, तो वहाँ पे हम लोग का ये होता था कि हमारे सुबह फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज XYZ कंसल्टेंट ऑन फ्लोर, हमारी एक टीम होती थी वहाँ पे विच वाज कंसिस्टिंग ऑफ अ सीनियर एंड देन R3, R2, R1 एंड हाउस ऑफिसर्स। 2 या 3 इंटर्न्स होते थे उसकी टीम में। सुबह जब अर्ली मॉर्निंग में आपको ना बेड्स, फॉर एग्जांपल देयर आर 20 पेशेंट्स ऑन द फ्लोर, आपको हर बंदे को डिवाइड कर दिए जाएंगे 3 से 4 बेड, अकॉर्डिंग टू द जो भी वहाँ पे रेशियो होगा, जो भी हमारे पास सेंसस होगा, उसके हिसाब से डिवाइड कर दिए जाएंगे। अब फॉर दैट 3 to 4 बेड्स यू आर टोटली रिस्पॉन्सिबल, उस पर क्या ट्रीटमेंट चलती है, उसको क्या दवा देनी, यू जस्ट हैव टू आस्क योर सीनियर, और आप खुद दवा एंटर करेंगे, खुद लगवाएंगे, एंड देन यू हैव टू बेसिकली टेल, खुद मॉनिटरिंग करेंगे। आपको सारी चीज़ उसकी खुद देखनी है, आपको वाइटल्स वगैरह, आपको रोज़ सुबह उसका केस प्रेजेंट करना है, आपको डिस्चार्ज समरी भी उसकी बनानी है, आपको A to Z सारे काम उसके करने हैं। इवन आपके रेजिडेंट्स को नहीं पता होते, पेशेंट सिर्फ हाउस ऑफिसर को पता होते हैं, और आप डायरेक्ट कंसल्टेंट से बात करते हैं कि आपने ये मैनेजमेंट किया, व्हाट डू यू थिंक, कैन आई ऐड मोर टू द मैनेजमेंट? वो आपको बताएंगे। आप रोज़ सुबह जब होता है, सुबह 8:30 बजे इंटरनल मेडिसिन का राउंड होता है, कुछ कंसल्टेंट 7:30 बजे भी करते हैं, कुछ 9 बजे भी करते हैं। वहाँ पे आप 3 से 4 जो आपको बेड असाइन होंगे, वहाँ आप सुबह प्रेजेंट करेंगे, यू टेल द हिस्ट्री। अगर आपके कंसल्टेंट को पता नहीं होगा, फॉर एग्जांपल आप फॉलो अप पेशेंट है, आपके कंसल्टेंट ने एक दिन पहले भी देखा हुआ, तो आपसे पूछेगा कि ओवर द 24 आवर्स क्या क्या इसकी मॉनिटरिंग थी, इसको फीवर स्पाइक आए, क्या था, इसके यूरिन आउटपुट कैसा था, सारी चीज़ें पूछेंगे, और इसका जो प्लान था 24 आवर्स पहले जो हमने सोचा था वो कहाँ तक पहुँचा। आप सारी चीज़ें बताएंगे, 24 आवर्स का उसका स्टेटस बताएंगे, वो किस कंप्लेन से आया था, कोई लैब रिजल्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें बताएंगे, एंड यू आर टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। कोई लैब भेजी होंगी, आपको भेजी होंगी, आपसे कोई पूछेगा नहीं,
कंसल्टेंट से आप डिस्कस करेंगे, राउंड ऑर्डर्स हो गए, कंसल्टेंट अपना नोट डालेगा, वो आपके नोट से एग्री करेगा तो लिखेगा, नहीं करेगा तो बताएगा कि तुमने मैनेजमेंट प्लान सही नहीं लिखा, हम इसको ये करेंगे। फिर ओवर द कोर्स ऑफ योर ड्यूटी 5-6 बजे तक जब भी हैं आप सारी चीज़ें वो करेंगे काम। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कल अगर काम नहीं होगा कंसल्टेंट आपको बोलेगा कि तुमने काम नहीं किया, योर सीनियर विल नॉट आंसर फॉर यू। इतना हैंड्स ऑन है वहाँ पे। एंड फॉर सर्जरी वार्ड के अंदर सेम गोज विद दैट, प्रोटोकॉल सारा फॉलो करना। अगर अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस है तो आपको टूजिए, अगर आप वो बेड देख रहे हैं, वार्ड बेड दे रहे हैं, तो आप डायरेक्ट कंसल्टेंट और अपने सीनियर रेजिडेंट हु इज द चीफ, आप उससे जवाब दे होंगे अगर कोई काम उसका मिस हुआ। उसके वाइटल्स अगर गिर रहे हैं, अगर उसके प्रेशर्स गिर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, या उसका यूरिन आउटपुट गिर रहा है, तो आप बताएंगे अपने सीनियर को। पेज आपको करेगा स्टाफ, सबसे पहले आपको करेगा, आपके कंसल्टेंट को कभी भी नहीं करेगा, वो आपको बताएगा क्या। फिर आपको इतनी होती है, जैसे हम लोग की डाउन 10 मंथ्स डाउन वी हैड द लिवरेज, वी हैड, हम लोग को इतना आ गया था कि हम लोग हाइपोकैलेमिया और इस तरह की चीज़ें हम लोग किसी से पूछते नहीं थे। हाइपरकैलेमिया में मैं कभी, मुझे याद नहीं कि मैंने किसी चीज, इन छोटी चीज़ों के लिए अपने सीनियर्स को तंग किया। मैं खुद मैनेज कर देता हूँ, मैं बता देता ये किया, मैंने टेस्ट रिपीट किया, अब पोटेशियम इतना है, सोडियम इतना था, इतना गया, लैब्स रिपीट करा दिए और अब ये रिजल्ट है। जो भी चीज़ें होती थी आई यूज्ड टू रिपोर्ट इट डायरेक्टली। तो यहाँ पे ये है। और अगर इफ यू आर डॉक्यूमेंटिंग और ये भी कर लो, पैसिवली इतना सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं क्या वो फिजिकली बैठ के किसी को पढ़ाना नहीं होता। लाइक अगर वही जैसे जैन मेंशन्ड, इफ यू आर मैनेजिंग अ हाइपरकैलेमिया पेशेंट, यू आर गोइंग थ्रू ऑल द स्टेप, वो आपको आ जाता है, फिर पैसिवली चीज़ें आ जाते हैं, कोई आपको बैठ के वो पढ़ाना नहीं होता है। As far as documentation is concerned in civil, so basically जो मेरे 3 wards surgery is for medicine 1 and cardiology, तो वहाँ पे documentation नहीं थी. But since I had worked in SIUT, I felt it was actually needed. So when I was in SIUT, ऐसे ही होता था, सुबह 8:30 बजे राउंड होता था, कंसल्टेंट कॉल पर होता था, एसोसिएट प्रोफेसर यूज्ड टू बी ऑन कॉल, प्रोफेसर यूज्ड टू बी ऑन कॉल टिल 11, डायरेक्ट कंसल्टेंट से बात करते थे, एसोसिएट प्रोफेसर से, यूज्ड टू बी अ बिग डील। तो फॉर अस जिन्होंने पहले से S4 में काम किया था या सिविल में काम किया था, तो बेसिकली SIUT में जब मैंने काम किया तो वहाँ बहुत डॉक्यूमेंटेशन थी, इतनी डॉक्यूमेंटेशन थी कि सुबह आके आपको फॉलो अप डालना है विद ऑल द लैब्स, विद ऑल द प्लान। और एक मरतबा मैंने फॉलो अप का पेपर मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने पूरा सब लिखा, लेकिन वो फॉलो अप का पेपर नहीं था, वो कोई और पेपर था, और मैंने फाइल में लगा दिया। एंड आई एम लाइक, कंसल्टेंट थोड़ा सा अच्छा फील करेगा कि यार मैंने फिर भी किया, एंड द कंसल्टेंट गोज लाइक व्हाट द हेल इज दिस, ये तुमने कैसे पेपर पे लिखा है। तो इतनी स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंटेशन थी SIUT में, बट इट वाज एक्चुअली गुड बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन मिस, and when you go back to the root cause analysis, you need that piece of paper, regardless of who your patient is, whether he's in AQ or in civil. हमारे पास ब्लड नहीं था, हमने किसी एक लोकल बैंक से, ब्लड बैंक से मंगवा लिया जो पीछे ही थी, इमरजेंसी थी, मिल नहीं रहा था। एंड वो ब्लड रिसीव करने के बाद उसको फेब्राइल नॉन हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गया एक, एंड बल्कि हिमोलिटिक का अब हमें समझ ही नहीं आ रहा कि वो रिएक्शन कैसे हुआ, क्योंकि एक पर्टिकुलर वार्ड में वो डॉक्यूमेंटेशन इतनी पुअर थी। सो पेपर वर्क से डरना वरना नहीं चाहिए, आई वुड अग्री। वर्किंग इन SIUT, आई डोंट नो कंपैरेटिवली कितना पेपर वर्क SIUT में कम होगा, ज़्यादा होगा, दैट आई डोंट नो, बट ओवरऑल आई थिंक इफ यू आर गोइंग टू वर्क इन एनी सेटअप, be it private or be it outside US, UK, Ireland, आपको उस पेपर वर्क की ज़रूरत पड़ेगी। सो आई डोंट थिंक दैट्स अ वेरी, वो एक परसेप्शन एग्जिस्ट करता है कि AQ में पेपर वर्क बहुत है, लेकिन यकीन करें वो जितना काम आपके ऊपर 18 घंटे में होता है ना, तो वो पेपर वर्क आपको पेनीज लगेंगे, वो इतना आपको महसूस भी नहीं होगा। सो देयर दैट। पेपर वर्क की बात करूँगा यार, कभी कभी ये कहना आपका पेशेंट, आपने प्रॉपर हिस्ट्री दी, ठीक, वो भाई साहब कोई पेशेंट था, वो एंटीबायोटिक से एलर्जी थी उसको, किसी न किसी आपने हिस्ट्री ली नहीं, आपने पूछा ही नहीं उससे, डॉक्यूमेंट नहीं किया इस चीज़ को, किसी न किसी एंटीबायोटिक से, तो उसका भी काफ़ी इशू होता है। प्रॉपर हिस्ट्री अगर नहीं मिलती, बेसिक जो सिर्फ हिस्ट्री है ना, मैं अगर उसी पेपर वर्क से स्टार्ट करूँ, क्योंकि हिस्ट्री आपका पहला पेज होता है जो पेशेंट के बारे में बताता है, तब आगे काफी सारी चीजें होती है, उसमें भी आपको डॉक्यूमेंट करना होता है। यार मैंने लाइक देखा है, मैं और मुझे
कॉल आई कि आपका पेशेंट आया है, इसका ट्रांसफ्यूजन करना है। मैंने बोला अच्छा, तो मैं क्या करूं? बोला ट्रांसफ्यूजन नोट डालते हैं। कर दिया, ठीक है। मैं बोला इसमें ना वाइटल्स लिख दिएगा आप, ठीक है। बिफोर के मैं लिख देता हूँ, आप आफ्टर लिख दिएगा वाइटल्स, कि उसका पेशेंट का अगर क्या हो, इमीडिएट या अर्ली या लेट रिएक्शन को याद दिए। ये बोल के मैं निकल गया नीचे। मैं नीचे गया, अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट नहीं हुआ, बट आई एम सेइंग कि ना खुदा ना करा अगर पेशेंट को कुछ होता, अब वो मुझे नहीं पता लगता क्या वो ट्रांसफ्यूजन की वजह से हो रहा है, ठीक है, क्या हुआ था, वाइटल्स नहीं थे, वो नहीं लिखा हुआ। वो मुझे बस उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये लिखवाने के लिए मुझे बुलाया कि मैं आके नोट डालूं। और यकीन करो ट्रांसफ्यूजन नोट जो है वो एक चीज होती है किसी भी पेशेंट के लिए, कि भाई ट्रांसफ्यूजन अगर नहीं है, उसको ब्लड आप लगा रहे हो, कुछ भी हो सकता है, किसी भी किस्म का रिएक्शन हो सकता है। पेशेंट को अक्सर फीवर होना शुरू हो जाता है, शिवरिंग शुरू हो जाती है उसको, और उस टाइम हम यहाँ कोई ना कोई बंदा होना चाहिए आपके साथ, आप साथ में एविल्टेक्सा दे देते हो, जो भी आप देखते हो कि ना भाई पेशेंट को मैनेज करना है, डायलिसिस या कोई भी ऐसी चीज हो रही होती है ना, उसके अंदर का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, बहुत इशू होता है। पेशेंट था हमारे पास, उसकी हमने और बहुत सीवियर सेप्सिस में नहीं थी, बट शी वाज गोइंग इनटू सेप्सिस, क्योंकि उसकी गट जो है ना बहुत गैंग्रीनस हो चुकी थी, क्योंकि गट रिमूवल हो चुकी थी, स्टोमा बैग भी लग चुका था। बट उसके बाद ना काफी ईयर्स पेशेंट आई बहुत ज्यादा फीवर के साथ और पेन के साथ, और डिस्चार्ज के साथ आई, तो पेशेंट को फिर एडमिट किया और उसको मैनेज कर रहे थे। तो उसकी सर्जरी करनी थी, मतलब सर्जरी होनी थी, प्रोटमी करनी थी, एक्सप्लोरेटरी प्रोटमी की, हो क्या रहा है, डिस्चार्ज आ कहाँ से रहा है, इसको फीवर हो रहा है, क्या सीन है। उसका ना सोडियम पोटेशियम भेजना था, ये बड़ी एक स्टोरी मैं सबको बताता हूँ। सोडियम पोटेशियम भेजना था उसको रात को। मेरे साथ एक हाउस ऑफिसर थी, तो उन्होंने क्या नाम है, मैं दूसरे पेशेंट देख रहा था, ठीक है। यहाँ पर मैं नहीं बोला गलती है क्या है, इंसान से गलती हो जाती है जो भी है। तो मैं कहीं और था, अपने दूसरे पेशेंट देख रहा, मुझे पता था कि यार एक पेशेंट का सोडियम पोटेशियम भेजना है रात को। तो मैंने उसको पूछा यार रात को वो सोडियम पोटेशियम भेज दिया था? बोला हाँ, वो मैंने स्लिप बना दी थी स्टाफ ने। बट सुबह 8 बजे कंसल्टेंट का मैसेज आया, तो बोलती है मुझसे वो जरा मुझे रिपोर्ट भेजो रिसेंट वाली। तो मैंने रिसेंट वाली उसको एक दिन पुरानी भेजी, रिसेंट वाली क्योंकि वही आ रही थी सिस्टम में। मैंने एक दिन पुरानी वाली रिपोर्ट भेजी थी, तो उन्होंने डेट लिखी, उसने बोला मैं ऑफिस में आना चाहिए। बोले रात को तुम लोगों ने लैब भेजी थी? मैं भेजी तो थी, मैंने अपने उसको देखा हाउस ऑफिसर, तो वो यूं हो गया मैम देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। मुझे कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं आई हूं सर्जरी करनी है, उसकी 9 बजे ओटी है, अब उसकी बेसिस पे सर्जरी नहीं कर सकती। एक छोटा सा सोडियम पोटेशियम ये डिसाइड कर रहा है कि मैं उसको ओटी में लेके जाना या नहीं लेके जाना, क्योंकि वो एनपीओ थी पेशेंट, एनपीओ रखा हुआ है, मैंने सोडियम पोटेशियम ही नहीं किया रात को। तो फिर उसी टाइम पे ये मैं उसका सैंपल लिया, मैंने स्टाफ से सैंपल लेके मैं खुद लेबोरेटरी पहुंचा, मैंने उसको बोला था प्लीज ये पेशेंट को सारा सब कुछ हो गया जी, बहुत एक्सट्रीम होगा तो बहुत मसला हो गया। खैर वो पेशेंट को सर्जरी तो हो गई, उसके बाद उसको और ज्यादा मसले होने लगे और शी एक्सपायर्ड बेसिकली। वो पेशेंट मेरी थी ना, एक्सपायर्ड हो गई थी, not because of the reason कि सोडियम पोटेशियम नहीं भेजा, but still it haunts me like as a worker, as a doctor, या कहीं ना कहीं मेरी तरफ से कोई इस तरह का ना हुआ हो। ऐसा बहुत होता है अगर चीजें प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट ना हो, स्लिप बनाना भी डंडा है, और अगर आप प्रॉपर्ली फॉलो ना, फॉलो अप लिखा हुआ है, डॉक्टर ने लिखा हुआ सोडियम पोटेशियम भेजना है, मेक श्योर टू सेंड, वो भेज ही नहीं रहे। तो डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो पेशेंट मैनेजमेंट का एक पार्ट है। हैंड ऑन आप एक दफा कर लो, आपका स्टाफ भी लगा लेगा, एनजीबी स्टाफ लगा लेगा, या अगर ब्लड सैंपलिंग भी कोई और कर लेगा, लेकिन अगर आपने पर फॉलो अप नहीं लिखा पेशेंट का, या आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं की, तो ये आपका नुकसान, आपकी गलती है। अगर आपने मेडिकेशन नहीं लगाई, आपकी गलती नहीं है, वो स्टाफ की थी, लेकिन वो भी एक मैनेजमेंट का पार्ट है। लेकिन अगर आपने फॉलो अप नहीं लिखा और पेशेंट के बारे में अगले बंदे को पता ही ना हो, रिसेंटली हाउस ऑफिसर मुझे कॉल किया, थोड़ा बहुत मेरे पास पेशेंट, मुझे कंसल्ट की कॉल जनरेट हुई है, मेरे सीनियर ने बोला जाके पेशेंट दिख रहा, वो बोलता कुछ नहीं लिखा हुआ, नया पेशेंट है, ठीक है, एडमिट हुआ है, और उन्होंने कॉल जनरेट कर दी कि कंसल्ट दे दो। अब वो हाउस ऑफिसर बेचारा नया नया वो खड़ा हुआ, बोला सिर्फ मैं क्या लिखूं? मैंने बोला भाई देख कुछ नहीं कर, तुम उनको बोलो पेशेंट ले लो इज्जत से, उसके बाद मुझे बुलाना, रिसीव करो, रीजन ऑफ कंसल्ट तो बताओ क्यों करवा रहे हो। ना उसमें लैब्स लिखी हुई है, ना उसमें हिस्ट्री लिखी हुई है, ना कोई ना एग्जामिनेशन लिखा हुआ है, और आप एकदम से कॉल जनरेट कर देते हो। तो ये थोड़ा सा
वही प्रोफेशनल इन्वायरमेंट क्रिएट करते करते अनप्रोफेशनल हो जाते हो, ऐसा सीन होता है। तो दिस डॉक्यूमेंटेशन शुड बी प्रोफेशनल। आईओ चार्टिंग हमारे स्टाफ क्या करते हैं बाकी में करते हैं, ये क्या करते हैं कि भाई इनपुट आउटपुट चार्टिंग का हम लोग करते हैं। तो अब इनपुट तो वो लिख सकते हैं, ठीक है, इनपुट उन्होंने लिख दिया, ठीक है, हाँ भाई इतने चला और इतना इंडेंट हुआ तो उन्होंने लिख दिया। अब आउटपुट मेजर करने के लिए ना वो क्या करी, अब वो फुलीज बैग सुबह एम्प्टी हो गया, ठीक है, अब कितने में एम्प्टी किया मैं नहीं पता, एम्प्टी हो चुका है और ये उन्होंने फाइल के अंदर लिखा कि एम्प्टी करने से पहले उसमें कितना था, कितना अमाउंट था, क्या यूरिन था, वो लिखा ही नहीं है। अब पूछ रहा स्टाफ से, यार वो बताओ एम्प्टी करने से पहले कितने पे एम्प्टी किया तुमने, स्टाफ को पता ही नहीं है। भाई आईओ चार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट किसी भी पेशेंट की, जब हम बोलते हैं ना इसकी आईओ चार्टिंग करनी है, तो मतलब उसकी करनी है। अगर वो मिस हो जाती है आईओ चार्टिंग, हमें नहीं पता यूरिन का कलर कैसा था, क्या था, था तो डार्क यूरिन था, डिहाइड को भी रीजन हो सकता है, हिमैचुरिया भी हो सकता है, बहुत सारी चीज हो सकती हैं। तो जो लैकनेस आती है ना वो दोनों से आती है, स्टाफ से भी आती है, डॉक्टर से भी आती है। अगर डॉक्टर सही तरीके से स्टाफ को नहीं कंट्रोल करता या बोलता नहीं है तो स्टाफ की अपनी मर्जी का, सिंपल है। बट मैंने जो ओवरऑल देखा है ना वो ये है कि ना भाई इट्स अप टू यू। मैंने जब भी काम करवाया मैं स्टाफ के नंबर ले लेता था, ठीक है, स्टाफ अपना नंबर देता, भाई मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझे अपना नंबर दे दो, वो अपना नंबर दे दिया उसने, मैं उसको फोन करके समझा रहा हूँ कि भाई ये पेशेंट है, इसका है, मैं जा जाके पूछता था, फिर मैं थोड़ी देर बाद चक्कर लगाता था, फोन पे भी कोऑर्डिनेशन चल रही है और जाके भी कोऑर्डिनेशन चल रही है, और मैं खुद भी डॉक्यूमेंट करता था, और जो भी चीज होती है उसमें डॉक्यूमेंट करना है, वो कुछ भी हो। और उसकी मैं एक स्नैप लेके, जब कोई चीज हो रही है स्नैप लेके मैं अपने ग्रुप में शेयर करता था डायरेक्ट कंसल्टेंट को या पीजी को, ताकि भाई मेरी तरफ से बात आगे हो गई और मैं उस टाइम पे मौजूदा वार्ड के अंदर, खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है। तो यस, डॉक्यूमेंटेशन पेपर से भागना नहीं है, पेपर वर्क जो है ना वो पार्ट है जिंदगी का, और ये सारी जिंदगी चलेगा। कंसल्टेंट भी बन के आपको जाके सीन बाय आपके नाम से आगे लिखा होगा, लेकिन आपने डॉक्यूमेंट करना है, आपने विजिट किया था डॉक्टर को, तो पेपर वर्क आपकी सारी जिंदगी चलेगा। और डिफरेंट लेवल्स के ऊपर पेपर वर्क थोड़ा चेंज होता है, पीजी लेवल पे चेंज हो जाता है, आपके लेवल पे चेंज, आप सीधा सीधा छोटा सा लिखना है पेपर, लिखना है सब्जेक्टिव, लिखना है थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव, लिखना है असेसमेंट में भी थोड़ा आपने प्लान एटलीस्ट लिखना है ना, प्लान क्या है, क्योंकि असेसमेंट में ऑब्वियसली अगर पेशेंट कॉन्शियस वेल ओरिएंटेड बैठा हुआ है, वो कोई पेन वेन की कंप्लेन नहीं कर रहा और कोई इशू नहीं है, तो असेसमेंट पे आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। लेकिन अगर पेशेंट को अनस्टेबल है या कोई चीज है, ओल्ड एज है, खांसी हो रही है या पेन कंप्लेन कर रहा था ऑलरेडी, तो फिर यस आप असेसमेंट में उसका पूरा सारी चीजें करोगे। बट पीजीज का अगर देखोगे, पीजी हर पेशेंट की पूरी असेसमेंट करता है, उसका सीएनएस भी देखेगा, उसका हर चीज देखेगा, उसका अपर लिम लुक करेगा, उसकी पावर भी चेक करेगा, वो सब भी डॉक्यूमेंट करेगा। लेकिन जो बच्चे यहाँ पर पूछना चाह रहे हैं ना, वो डॉक्यूमेंटेशन से नहीं पूछना चाह रहे, वो ये सारा जो हमारे पास वर्क होता है ना, स्कुट वर्क जो हम बोलते हैं, स्किट, जो भाई हमारा नाम नहीं है, हम क्यों कर रहे हैं, ये वाली जो बात सवाल, ये भी देखें, हर हॉस्पिटल के वर्क एनवायरनमेंट डिफरेंट है, और आप उसमें ढल जाते हो और आपको बन जाता है कि ना भाई मैंने अपने डोमेन में रह के किस तरीके से इस काम को अंजाम देना है। कुछ लोग स्टाफ को कंट्रोल कर लेते हैं, भाई कुछ हाउस स्टाफ को कंट्रोल कर लेते हैं, लोग बोलते हैं स्टाफ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, कुछ हाउस स्टाफ को कंट्रोल करते हैं बिकॉज दैट कम्युनिकेशन माइंडसेट, वो अच्छे तरीके से बातचीत करते हैं उससे, उनको थोड़ा बहुत मक्खन वक्खन लगा के काम करवा लेते हैं, काम हो जाता है। काफी सारी बातें हो गई। सैलरी डिफरेंस, लोग सैलरी पूछ रहे हमारी। हेलो, सैलरी डिफरेंस में अगर सब है सैलरी डिफरेंस में बात करें, जी 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 आई थिंक सिविल में लाइक इन द बिगिनिंग ऑफ द कोविड सैलरी सिविल में ज़्यादा मिल रही थी, दे वर लाइक गेटिंग अराउंड 55 और समथिंग, और AQ में 50,000 मिल रही थी। बट रियली एडवांटेज इन AQ है क्या, वहाँ आपको ऑल्दो यू आर गेटिंग 50,000, वहाँ इकोनॉमी मील्स आपको मिल जाती है सस्ते में, यू गेट योर फार्मेसी लैब्स, 80,000 की रीइंबर्समेंट होती है, यू कैन 3 महीने में यू कैन इन 3 मंथ यूर अलॉटेड दिस 20,000 रुपीज़, आप लैब्स ले लें, दवाई ले लें, यू हैव योर OPD अपॉइंटमेंट से आप OPD जा सकते हैं, आपने अपने लैब्स करा, साइड बेनिफिट्स बहुत हैं AQ में। सही है। अच्छा यार आगा खाओ जॉब से रिलेटेड ना क्वेश्चन टाइम है, एक आया हुआ है कि ना टेस्ट अंदर मेन कोर्स किस चीज का होता है, बेसिक साइंस होता है या क्लिनिकल होता है, और दूसरा क्वेश्चन ये आया हुआ है कि ना भाई इसकी डेट
साइट्स कब आती हैं, इंट होता है, और रिजल्ट ना आया तो क्या हो? अगर ये छोटा सा रिपीट कर दो भाई ये बात। क्वेश्चन इट वेरीज मेडिकली, क्लिनिकल साइड से भी क्लिनिकल साइड से भी क्वेश्चन आता है। इमरजेंसी में आपका पेशेंट आया है, ही इज एक्टिव ब्लीडिंग, व्हाट डू यू डू? हमारा सवाल आता है। मेडिसिन से भी सवाल आती है। तो लाइक इट्स अ मिक्सचर, दोनों क्लिनिकल साइड भी होती है और आपकी मेडिकल नॉलेज भी होती है। व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन? हमारी बात में Mohsin, your voice is distorted. सो या बेसिकली ये सवाल था कि क्लिनिकल से ज़्यादा सवाल आते हैं या बेसिक साइंस से ज़्यादा आते हैं। तो इसका डेट का जवाब फर्क। ये है कि आई स्टिल रिमेंबर, हाँ, ये है कि क्लिनिकल से आते हैं, मेडिसिन ज़्यादा आपका आता है। लेकिन ये भी है कि बेसिक से बिल्कुल नहीं आता। बेसिक मतलब एनाटमी वो FCPS लेवल नहीं पूछी जाती, लेकिन बेसिक आपको हल्का फुल्का पूछते हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जो पेशेंट बोल रहा हूँ, पेपर जो बनता है दैट इज फॉर्म फ्रॉम मेडिसिन आपको रिवाइज करनी होगी। हेमेटोलॉजी हो या कोई भी हो, वो पूरी रिवाइज करके जाए। भले आप गाइनी ऑप्स पे इतना फोकस ना करें या पीड्स पे फोकस ना करें, लेकिन मेडिसिन इज अ मस्ट। आई स्टिल रिमेंबर पूरा कॉग्निशन पाथवे का सवाल आया था एक हमारे पेपर के अंदर, एंड मैनी कुछ पीड्स के माइलस्टोन्स वगैरह आए थे। हालांकि ये सारी चीज़ें आपकी ओवरव्यू आती है टेस्ट के अंदर। लेकिन जो जो ज़्यादा मैं ये फोकस करूँगा, जो फाइनल ईयर की नॉलेज है, जो फाइनल ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं, आई थिंक इट्स मॉड्यूलर है या वापस ईयरली हो गया। आई एम नॉट श्योर व्हाट इज गोइंग ऑन इन मेड्स दीस डेज। लेकिन if ईयरली हो गया है, उसके अंदर आपके जो मॉड्यूल्स होते हैं मेडिसिन से, जी। So there is a question कि उस इंटरैक्टिव मॉड्यूलर सिस्टम ही है, बट एनुअल है, मतलब सेमेस्टर्स नहीं है। तो जैसे फाइनल ईयर तो सब्जेक्ट्स हैं भाई, सर्जरी, मेडिसिन, पीड्स, गाइनी, और कोई सेमेस्टर्स भी नहीं है, कोई मॉड्यूल्स भी नहीं है फाइनल ईयर में, जो खासतौर पे टाओ के अंदर है एज फार एज आई नो। और बाकी फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर जो बीच में होता था, उसकी जगह अब कोई एग्जाम नहीं होता, मॉड्यूल्स चल रहे हैं सिर्फ। जैसे ब्लड फाउंडेशन ब्लड, CVS, लोकोमोटर, रेस्पो करा दिया पूरे साल, फिर इन दी एंड एक एग्जाम ले लिया। तो देयर इज नो अ मिडवे एग्जाम नाउ। ये सीन तो यस, तो फाइनल ईयर की जो चीज़ें होती हैं, जैसे गाइनी ऑप्स का पेपर होता है, सर्जरी का होता है, मेडिसिन का होता है, पीड्स का होता है, ये 4 पेपर होते हैं। ये इनसे ही आता है पेपर खान का जो आता है। और साथ में आप पास पेपर्स कर लें, देयर इज एन एडेड थिंग, MDB कर लें, देन मास्टर ऑफ द बोर्ड्स कॉर्नर फिशर की, यू आर गुड टू गो। और साथ में AQ के पास पेपर, दैट्स इट। यू डोंट नीड टू स्टडी मोर। और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स बनाएं। अगर आपको किसी डेविडसन से समझ नहीं आ रही, तो आप YouTube की वीडियोस देखें। आई डोंट नो कि पीपल स्टिल, कुछ लोग वीडियो रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करते। YouTube इज़ अ ग्रेट लर्निंग टूल। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से सीखी हैं। DNB बहुत अच्छा है, बोर्ड्स एंड बियॉन्ड इतना अच्छा है, कैप्लन है बहुत अच्छा, लेकिन इट्स वेरी लेंदी एज वेल। सब है। इफ यू वांट टू, अगर आपको एक टॉपिक सीखना है, आपके पास 15 मिनट है, यू कैन फाइंड YouTube की वीडियोस, आपको सब सिखा देंगे। जस्ट मैनेज थिंग्स अकॉर्डिंगली। आपको वो, आप उन एरियाज पे फोकस करें जो आपका मॉड्यूल वीक है। थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में आपने पढ़ी होती है गाइनी ऑप्स, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस ना करें, क्योंकि फाइनल ईयर तक याद ही होती है आपको। वो इरफान मसूदी पढ़ रहे होते हैं वो लोग, जो आपने फोर्थ ईयर में हाईलाइट की होती हैं। तो ज़्यादा उसमें मसला होता नहीं है। बाकी यही है आगा खान के टेस्ट में, एंड देन इंटरव्यू में होता है, देन यू जस्ट रीड द एथिकल का एक बुक है कॉर्नर फिशर की, एथिक्स के केसेस पे, आई गेस 50 और 60 केसेस करके, वो आप पढ़ लें, देन दैट्स इट, इनफ। something तो अच्छा, मैं तो हमारे पास जो एक तो हो गया मेडिसिन, सर्जरी, गाइन, बोले okay, so there was a question about interactive stations. हमारे टाइम it was peak COVID, so कोई interactive station नहीं होते, but I think अभी जो usually interactive stations वही आते हैं जो आप final year में practice कर रहे होते हैं। NG tube लगाना, Foley's, male catheterization and female catheterization. You actually have really good videos online which follow you the protocol, NG लगाना। So ये 4-5 मेनली इंटरैक्टिव सेशन, बाकी तो वही एथिकल क्वेश्चंस होते हैं, एंड देन दे जज योर पर्सनालिटी।
सही है। And for the resources, कुछ ये सवाल ये भी I think from where do you get the resources? So I got it from a group. There are various WhatsApp group in which AQ preparations चल रही होती हैं. So you can easily be added on that group. वहाँ पर you find a lot of resources which will be really helpful. और एक और क्वेश्चन था, फाइनल एडवाइस फॉर हाउस। एक मिनट, इससे पहले जो है ना, व्हाट टाइम स्टार्ट, एक परसेप्शन, एक चीज के ना भाई, हाउस जॉब के स्टार्ट करने से पहले और हाउस जॉब खत्म होने के बाद नोमान से डॉक्टर नोमान बनने का सफर, मतलब एक जो चीज है, जैसे एक जो होता है ना कि यार अब डॉक्टर वाली फीलिंग आ रही है क्या, अगर जिस तरह फॉर एग्जांपल मुझे अगर अभी जॉब दी जाए, ठीक है, देखिए बहुत सारे लोग कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, फॉरेन जॉब पे लग जाते हैं, मेडिकल ऑफिसर भी जॉब कर रहे होते हैं, अपनी ओपीडी भी कर रहे होते हैं, डिफरेंट जगहों पे लग जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो क्या ऐसा हर बच्चे के साथ होता है, या फिर अगेन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो, कि भाई आप हाउस जॉब से पहले जो थे पूरे 1 साल में इतनी ट्रांजिशन आ गई कि ना आपको पेशेंट मैनेज करना आ गया, क्या ये पॉसिबल है, या फिर ये अगेन बच्चे बंदे पे डिपेंड करता है? नहीं, I believe this is solely depend on the individuals. सबसे अच्छी बात जो है कि ये है, I got the exposure of emergency. I don't think so emergency setup पूरे पाकिस्तान में ऐसे कहीं नहीं होगी जैसे AQ की setup है. And this is house job करने की वजह से, this is I believe I want to do emergency medicine in the future. I got introduced. I got introduced a lot of people from emergency medicine into med. जी आ रही है. Should I? Continue. आवाज आ रही है. अच्छा, so what I would say, हाउस जॉब में you should explore आपको आगे करना क्या है. Like मुझे हाउस जॉब में पता चल गया था this is what I want to do in the future, and likewise I got to know people from emergency, how their lifestyle was, और क्या हो सकता है, क्या what should I expect and what not. So this is very important advice for people starting their house job. आपको आगे क्या करना है. हाउस जॉब इज आई बिलीव द परफेक्ट टाइम इन विच आपके ऊपर इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होते हैं, इतने यू डोंट हैव दैट बिग ओनरशिप, तो इसमें आप डिसाइड कर सकते हैं ना आपको आगे करना क्या है. Yes, adding to Dr. Numan's thing कि आप फॉर एग्जांपल आप हाउस जॉब के बाद काफ़ी लोग एमओशिप कर रहे हैं, दे आर बेसिकली रिसर्च पोजीशन पे लग गए हैं, आखान से जो आप गए हैं. दिस इज एडेड बेनिफिट कि आप एक बार इंस्टीट्यूट में हो जाते हैं आखान में, तो देयर इज दिस एलुमनाई सिस्टम, देन यू गेट रिकॉग्नाइज्ड, देन यू कैन अप्लाई फॉर वेरियस रिसर्च पोजीशन, यू कैन वर्क इन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जिनको ग्रांट या फंड्स बाहर से आ रहे होते हैं, एंड देयर इज अ वाइड वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. आप क्या करना चाहते हैं. एक तो एक्सपोजर भी ज़्यादा है क्योंकि आई थिंक डिपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको हर चीज़ से वाकफियत हो जाती है, यू गेट फेमिलराइज विद एवरीथिंग. एंड मेरे साथ जो हैं पीपल हैं, दे फेल्ट कॉन्फिडेंट इनफ कि वो एमओशिप कर सकते हैं, एंड हेक्टिक एमओशिप भी कर रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा आपको एक ड्रेन कर देते हैं. मतलब फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर वर्किंग 100 आवर्स अ वीक, आप इतने अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते हैं, यू हैव डन थिंग्स रिपीटेडली ओवर एंड ओवर अगेन, एंड यू डोंट फील कि आप किसी चीज़ में लैक करते हैं. और आपके लिए फिर वो चीज़ें फॉर एग्जांपल इफ यू आर डूइंग 1 in 5 कॉल, अगर आप किसी एमओशिप में लगे हैं, तो दैट इज हेवन फॉर यू. आप 1 in 3 कॉल से कहाँ 1 in 5 कॉल कर रहे हैं, और आपको सुबह 8 बजे छुट्टी मिल जाती है, और यहाँ पे आपको शाम, कभी कभार शाम हो जाती थी, पोस्ट कॉल 7 बजे जा रहे हैं अगले दिन. तो ये तो डेफिनेट है कि आप एक बार जब बहुत ज़्यादा सख्त कर लेते हैं, देन एवरीथिंग बिकम्स डाउनहिल फ्रॉम देयर. सही. सो देयर वाज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग AQ हाउस जॉब कब स्टार्ट हुई. तो जनरली बिकॉज ऑफ द कोविड अभी इन लोगों का टाइम टेबल थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है, सो इट यूजुअली स्टार्ट्स इन जनवरी. तो बट क्योंकि कोविड हो गया था, इन आवर बैच इट स्टार्टेड एट अप्रैल, लास्ट बैच इट स्टार्टेड एट मार्च. सो देयर इन लोग का प्लान ये है कि ये लोग आहिस्ता आहिस्ता दे विल गो बैक टू द नॉर्मल रूटीन. नेक्स्ट ईयर अभी फेब में स्टार्ट होगा, उसके बाद इन द नेक्स्ट 2 years इट विल come back to his baseline, so that January में आ जाए. दूसरा क्या, if you pass the interview and you pass the test, they will definitely wait for the results. हम लोग को भी फाइनल ईयर के रिजल्ट्स नहीं मिले थे, and we joined as a doctors in AQ.
क्योंकि देयर वाज एन एक्सेप्शन मेड इन आवर केस, क्योंकि क्योंकि सारी चीज़ें एक किस्म से हॉल्ट हो गई थी। तो हमारे उसके अंदर ये हुआ था कि हमें बोल दिया था आप आगा खान में जाने का ये क्राइटेरिया था, यू पास द टेस्ट, यू पास द इंटरव्यू, यू आर इंडक्टेड ऑटोमेटिकली। ऑब्वियसली आपने मेड स्कूल भी पास किया हो, ऐसे नहीं करते। मेड स्कूल का अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग है फाइनल ईयर का, तो उसमें एक्सेप्शन उन्होंने ये की थी कि उन्होंने बोल दिया था कि आप आ जाएं, यू आर जस्ट एन ऑब्जर्वर जब तक आपके पास प्रोविजनल लाइसेंस नहीं आता। तो उन्होंने उस एक्सेप्शन पे खोला था क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा थे, कोविड की वजह से सारी चीज़ें हुई थी अफेक्ट। लेकिन ये विद द कमिंग ईयर्स ये बेहतर हो जाएगी, क्योंकि वो पीछे ला रहे हैं अपना जो प्रोग्राम की इंडक्शन का प्रोसेस है वो जैसे इस साल मार्च में स्टार्ट किया, अगले साल फरवरी से करेंगे, उसके अगले साल ये जनवरी से करेंगे, तो वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। जस्ट लुक अप, और आपका जब आगान की डेट्स आएंगी आपके मेडिकल स्कूल में शोर मच जाएगा। वो छुपती नहीं है इसकी डेट, क्योंकि काफ़ी सारे लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, बहुत बड़ा टेस्ट होता है, तो यू विल गेट टू नो। लेकिन अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी जून चल रहा है, तो एक्सपेक्ट अराउंड अगस्त सितंबर या आफ्टर जून किसी भी वक्त डेट अनाउंस हो जाएगी। And it's always और online. They advertise the post, so you can always यस, have a look on the website. there's also this question, what can I do as current fourth year to increase my chances for getting an AQ house job? The things that you can do is सबसे पहले तो आप दुआएं मांगे, उसके अलावा आपको अपनी ना सीवी ओवरऑल करनी पड़ेगी अच्छी। अगर आपने इलेक्टिव्स नहीं किया हुआ फोर्थ ईयर में, आई सजेस्ट कि आप आगा खान में इलेक्टिव्स कर लें तो बेहतर है, अगर आपका पाकिस्तान में रहने का प्लान है। कहीं और इलेक्टिव्स करें, ओवरऑल अच्छी सीवी बनाएं। अगर आपने रिसर्च की, दैट इज़ वेल एंड गुड। आपने कोई रिसर्च प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो वो भी ज़रूर ऐड करिएगा अपनी सीवी के अंदर। एक्स्ट्रा को करिकुलर जो करते हैं वो सारी चीज़ें ऐड करिएगा। लेकिन ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको जाना है इंडक्शन प्रोसेस में, तो अगर अगस्त या सितंबर में उस साल के अगर वो टेस्ट होगा, तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग जनवरी या फरवरी से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट रिवाइजिंग मेडिसिन, स्टार्ट रिवाइजिंग एवरीथिंग, क्योंकि आपके मेड स्कूल के यूजली एग्जाम लेट होते हैं, आपकी प्रिपरेशन नहीं होती तब तक आगा खान के टेस्ट के लिए। तो अगर मेरा तो ये था कि आई स्टार्टेड स्टडिंग अर्ली, क्योंकि कोविड का टाइम भी था, घर पे होता था, तो आई स्टार्टेड स्टडिंग। मैंने मेडिसिन रिवाइज करना शुरू कर दी थी, एंड ऑन द डे ऑफ AQ टेस्ट मुझे मेडिसिन काफ़ी सारी याद थी, मुझे कोगुलेशन पाथवे याद है, मुझे इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स याद थे, और ये मुझे हेल्प हुई थी चीज़ रिकॉल करने में, क्योंकि आई स्टडीड इट लाइक एनी अदर एग्जाम। चीज़ें रिवाइज करके गया था मैं, माइलस्टोन्स भी इवन देख के गया था। तो आप बस ये करें कि फाइनल ईयर की चीज़ों पे फोकस करें। व्हेन यू स्टार्ट फाइनल ईयर मेड स्कूल, उसकी चीज़ों पे फोकस करें। लेक्चर्स आप फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर टेकिंग अ लेक्चर, मेक नोट्स ऑफ इट, क्योंकि आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि आप पूरी डेविडसन रिवाइज करें, आप मिलियन लव रिवाइज करें, आप पूरी परवेज अकबर रिवाइज करें, एंड देन आप 10 टीचर्स रिवाइज करें। इन 4 बड़े सब्जेक्ट से आते हैं, तो आप कोशिश करें जो आपके मेड स्कूल में जो लेक्चर चल रहा है उसको आप गौर से सुनो, एंड जस्ट मेक नोट्स ऑफ इट, और वो आप टॉपिक उसी वक्त कवर कर लें देन एंड देयर। उसकी बेसिक मैनेजमेंट आउटलाइन आपको पता हो, ताकि जब आप टेस्ट में बैठें तो आपको कोई चीज़ अनफेमिलियर ना लगे। अच्छा भाई, कोई चीज़ रह तो नहीं गई? कोई चीज़ आप लोग अगर कुछ बोलना चाहो? बातें करने को तो बहुत सारी हैं भाई। हाउस जॉब इटसेल्फ जो है ना काफ़ी लंबी जर्नी होती है। मेरे दोस्त जो है ना वो डिफरेंट जगहों पे सेग्रीगेट हो गए, कोई जिना में कर रहा है, कोई आगा खान में कर रहा है, कोई सिविल में कर रहा है, तो मुलाकात तो होती नहीं थी। उमर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उमर का लाइट का इशू हो गया थोड़ा सा ना, बहुत अच्छा दोस्त है मुझे। मैं जब भी इससे मिलने जाता था तो मुझे पता लगता था भाई ये कॉल पर है सिविल में। अब जिस दिन मैं कॉल पे हूँ उस दिन वो फ्री है, जिस दिन वो कॉल पे है उस दिन मैं जिस दिन वो फ्री है उस दिन मैं कॉल पे हूँ। एक अजीब सा हो जाता है कि ना भाई आपके जो दोस्त है उनसे मुलाकात नहीं हो पाती, लाइफ बिल्कुल अजीब सी हो जाती है। जब आप बाहर निकलते हो तो फिर लोग बोलते हैं यार देखो बड़े लोग आए हैं। और ऐसा ही होता है ना कि ना जब आप डॉक्टर लग गए, फुल PMC लाइसेंस आ गया, तो अब आपसे लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। अब वो रहते हैं पाकिस्तान में ना, तो ऐसा होता है कि जैसे फैमिली मेंबर्स बैठे हों, क्योंकि मेरे साथ तो होता है, जैसे वो उनको उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है कि ना भाई ये हाँ मैं तो कर लूँगा। मेजोरिटी हद तक बता भी देते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक रिपोर्ट लेकर आ गया मेरे पास, अब रिपोर्ट पढ़ना तो आती है यार, वो अब इतना भी नहीं है, डायग्नोसिस भी बना ही लेते हैं किसी हद तक। जब हम हाउस जॉब कर लेते हैं तो काफ़ी सारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है हमारे साथ। तो कैरियर डिसाइड करना ड्यूरिंग हाउस जॉब कितना आसान है कितना मुश्किल है, ये लास्ट बात हम करते हैं ताकि एक एंडिंग हो जाए। कि कैरियर डिसाइड करना, कैरियर बात पे कि मुझे जाना कहाँ है, क्या ये हाउस जॉब में आकर बंदा सीख सकता है, या फिर अगेन बंदा तो बंदा वेरी करता है। कोई कुछ लोग कर लेते कुछ लोग नहीं करते। मेरा ये ओपिनियन है, आप लोग क्या कहेंगे? ये बंदा तो बंदा वेरी भी करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत डाई हार्ड फैन है किसी
फील्ड के, फॉर एग्जांपल न्यूरोसर्जरी बहुत ज़्यादा फ़ैन है, और आपने सेकंड थर्ड ईयर में और आपने फोर्थ ईयर फाइनल ईयर आपने हर साल में अपने इलेक्टिव्स किए हैं, आपने एज अ हाउस ऑफिसर मतलब काइंड ऑफ आपने इलेक्टिव स्टूडेंट बन के आपने पूरी नाइट्स वगैरह की हैं, तो आपका ज़्यादा विलिंगनेस है। लेकिन आई एम श्योर 80% ऑफ द पीपल आर स्टिल अनश्योर। जब आप फाइनल ईयर मेड स्कूल ख़त्म करते हैं तो उनको पता नहीं होता कि क्या सही है क्या नहीं है सही। मैं भी उनमें से था, लेकिन आफ्टर डूइंग हाउस जॉब आपको ज़्यादा अच्छा पता चल जाता है कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। आपको एक रियलिटी चेक भी मिलता है कि आप एक ज़िंदगी, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर लिविंग एज अ साइक रेजिडेंट और यू साइक हाउस ऑफिसर, और ये जनरल सर्जरी का हाउस ऑफिसर है या फिर इंटरनल मेडिसिन हाउस ऑफिसर है, तो टोटली डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। आपको पता होता है कि अगर मैं इसमें आऊँगा तो 5 साल बाद 5 साल की ट्रेनिंग में मुझे इस तरह रहना पड़ेगा, या इंटरनल मेडिसिन में तो 5 साल में इस तरह, या साइक में तो 5 साल में इस तरह होगा, मतलब सारी ज़िंदगी चिल करूँगा। तो इट डिपेंड्स। और मैं यही बोलूँगा सबको कि इट इज़ बेटर टू डू योर हाउस जॉब। आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत खुल जाती है। अब फॉर एग्जांपल अब कोई भी रिपोर्ट लेके आता है, आई एम नॉट टोटली अनअवेयर ऑफ दीज थिंग्स, और मुझे बहुत आसान होता है उनको बताना या मेडिकली मैनेज करना, क्योंकि मैंने खुद पेशेंट मैनेज किए होते हैं 1 साल। खुद आप काफ़ी चीज़ें कर लेते हैं, मैनेज करते हैं। आप एज अ फिजिशियन एक काम कर रहे होते हैं, आप मैनेज कर रहे होते हैं, आप पेशेंट से डील कर रहे होते हैं 1 साल के अंदर। तो आपको ये डे टू डे जो मसले होते हैं, आपको एक ओवरऑल जेनरिक जो मेडिसिन होती हैं वो भी पता चल जाती हैं। आपको अलार्मिंग साइंस भी पता चल जाते हैं, कब आपको उसको बोलना है कि आप फौरन हॉस्पिटल जाएं, कब आप, और आपको एक ज़िंदगी का पता चलता है एंड हाउ टू, फॉर एग्जांपल इफ मोस्ट ऑफ द पीपल हैव नॉट डन जॉब्स, मतलब किसी किसी ने नौकरी नहीं की होती जब तक वो मिड स्कूल में होते हैं। कुछ लोग होते हैं दे आर गिविंग ट्यूशंस और दे आर बेसिकली डूइंग अदर थिंग्स, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के लिए एक ज़िंदगी में भी एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन होता है, हाउ हाउ टू स्पेंड योर अर्निंग्स, हाउ टू मैनेज फाइनेंसेस एज वेल, व्हिच इज़ आल्सो अ प्लस पॉइंट। और मूविंग फॉरवर्ड आपको ज़िंदगी में सब करना है आगे, तो एक ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस होता है। एंड आफ्टर हाउस जॉब, फॉर एग्जांपल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर स्टेप्स, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर लैब आइलैंड जो भी है, आपको अगर फॉर एग्जांपल 203 का हो गया डॉलर एंड 209 का हो गया पेट्रोल, आई डोंट थिंक इतनी किसी के पास वसाइल होंगे कि वो बैठ के, चलो होते हैं लोगों के पास, दे कैन बेसिकली सिट एंड प्रिपेयर फॉर स्टेप्स, लेकिन आपके पास एक लिमिटेशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव गिवन स्टेप 1 एंड आप पक गए हैं, यू वर्ड आपसे देखा नहीं जा रहा, स्टेप 2 आपकी आंखों में दर्द हो रहा है, बोल रहे हैं यार अब मुझे 4000 क्वेश्चन बैंक वापस करने पड़ेंगे 4 महीने के अंदर, एंड यू जस्ट वांट अ ब्रेक। आपको आप इट इज आपने हाउस जॉब की हुई, यू कैन अप्लाई फॉर एन आरएमओ जॉब कहीं पे भी। आपके पास लिमिटेशन नहीं होगी कि आप नहीं कर सकते नौकरी, आपको पहले हाउस जॉब के प्रोसेस से जाना है फिर उसके बाद करना है। एंड इट इज़ बेटर दैट यू डू ये हाउस जॉब अपने कोलीग्स के साथ जो सेम ईयर में ग्रेजुएट कर रहे हैं। आप लोग एक अलग लेवल पे बॉन्ड करेंगे। आप लोग कुछ सीनियर हाउस ऑफिसर्स भी होते हैं जो ईयर ऑफ ग्रेजुएशन जिनका डिले होता है, लेकिन आई ऑनेस्टली प्रेफर जस्ट गेट डन हाउस जॉब एंड गेट इट आउट ऑफ योर वे। एक बार कर लो, उसके बाद फिर जो करना है आगे जिंदगी में, वो तीर मारना है, आपको स्टेप्स करना है, प्लान करना है, मारते रहना, सारी जिंदगी है फिर तीर मारने की। आपको Yeah, 260 it's मारना है, not a स्टेप race. सीखना है, आप 2 साल बैठ के पढ़ो, Uh, लेकिन जस्ट डू गेट डन विद योर हाउस जॉब, चाहे आप जहां से भी करो। to अगर सही आगा बात खान है. में फॉर एग्जांपल आगा खान It's की really not. इंडक्शन प्रोसेस बहुत, यस आगा खान का इंडक्शन प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत डिफिकल्ट है। अगर ना भी हो तो डोंट गेट स्टार्टेड, अपने करंट इंस्टीट्यूट में जाए, वहां से ही कर लें। मैं तो सबको यही करूंगा। बाकी डॉक्टर नुमान एंडिंग